Let's see. Today we will. Can you see the screen? Hello. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. We'll see. Yes, sir. Today we'll start with the unit two. Okay. So, see, so far as your unit two is concerned, there are two chapters. One is the income under the head capital gain, and second one is the income from other sources. Okay, income from other sources. So these two chapters we are supposed to complete before your exam. So probably I will take the lecture up to 2nd of January, and before that we will complete the both chapters. Every day I will teach you 2 hours in the evening, and we will complete both the chapters. Okay. So today I am starting with this chapter, income under the head, income from other. It's very simple. You all know, you all may have learned the same in your second year BCom. So you are aware. Okay. So see, let us start with the income under the head, income from other sources. Okay. So let us start with the income under the head, income from other sources. Okay. Income under the head, income from other sources. This, you know that there are 5 heads of income. Okay. Out of that 5 heads of income, uh, salary that you already have learned in your second year BCom, house property that you already have learned in second year BCom, PGBP we already are learning. Okay, then capital gain and income from other sources. So there are 5 heads of income. Now, out of these 5 heads, so this we are already learning, and this I am starting today. Okay, so we all know that all heads income, whatever taxable income we are calculating for each year, that will be useful to us for what? For calculation of the gross total income. Okay, and from the gross total income, certain deductions are available under section 80C to 80U. Okay, the deductions you will give, from that you will get the net income, and see on net income, net taxable income, and on this net income you are supposed to apply the tax rate, and we are supposed to calculate the income tax. Okay, so this is our goal. This is our goal. That this is the place where we have to reach. Okay, so you all know. So we are supposed to learn all 5 heads. Okay, so for that, in your syllabus, these are the 3 heads that we are supposed to learn. This we are already learning, and today I am starting with this. Okay, and within 1 or 2 days we will start this capital gain also. Okay, so see what is the income under their income from other sources. So you all know that see every head of income is having its own speciality. Okay, like suppose when the income is taxable under their salaries. Okay, so there is a basis of charge. You know that when the relationship between the payer and pay, okay, is a employer employee relationship. अगर payer और payer के बीच में employer employee relationship होती है, then income is taxable under the head salaries. Okay, same way house property का आपको पता है कि if you are having a house property you give on a rental basis, and if you earn the rental income, it is taxable under the head house property. Okay, PGPP, you know that if there is a business income, we are already learning the section 28, that which incomes are taxable under the PGPP. And capital gain, when the income is taxable, if you are having a capital asset, if you transfer that capital asset during the previous year, and on the transfer of that capital asset, if any gain is arise, then that gain is taxable under the head capital gain. Okay, so every head is having a speciality. Okay, if relationship between payer and pay is the employer-employee relationship, income will be taxable under their salary. If you are having a house property, give on a rental basis, and if you earn the income, is taxable under the head house property. अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस से आने वाली इनकम पीजीपीपी में टैक्सेबल होती है, और अगर आपके पास कैपिटल असेट है और उसको आप ड्यूरिंग द ईयर ट्रांसफर करते हो, और ऑन दैट ट्रांसफर इफ एनी गेन इज अराइज टू यू, दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन.
then this question arises that which incomes are taxable under the head income from other sources. So we have to start with the income from other sources. So which incomes are taxable under the head income from other sources? This is the question. So income from other sources is a residual head of income. Okay, it is a residual head of income. मतलब if देखो what is the speciality कि when the income will be taxable under the head income from other sources. तो अगर आपके पास क्या है, if there is a income, देखो क्या है, if there is a income as per section 2 subsection 24 of the income tax act, if suppose the receipt is received by you and if it is the income, okay, now if that income is not exempted income under section 10 or any other section, okay, if income is not exempted income, तो income है और वो income कैसी है, exempted नहीं है, okay, and at the same time income is not covered under any other head. Okay, any other head matlab above 4 heads, whatever 4 heads I have discussed with you, income is not covered in under any of these heads. Income is not covered under the head salary, house property, PGBP or capital gain. Okay, and still it is a income and it is not exempted and not covered under any of the 4 heads, then the income will be taxable under which head? It will be taxable under the income from other sources. So this is the speciality. Like see for example, suppose I am having a deposit in the bank. Okay, suppose बैंक में डिपॉजिट पड़ी है मेरी और बैंक डिपॉजिट पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आई हैव अर्न द इंटरेस्ट. ओके, आई हैव अर्न द इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट की इनकम अराइज हुई, ओके, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. नाउ दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट अंडर व्हिच हेड इट इज टैक्सेबल. देखो तो मैं इसको पहले चेक करूंगा कि इनकम है, तो इट इज क्लियर दैट बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट मिलता है तो इनकम है. वो एग्जम्प्टेड है, तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि इंटरेस्ट इनकम एग्जम्प्ट हो. नाउ दिस इंटरेस्ट यू हैव टू चेक वेदर इट इज कवर्ड अंडर द हेड सैलरी. वो सैलरी की इनकम है तो नो, इंटरेस्ट इज नॉट अ सैलरी इनकम. इंटरेस्ट इज नॉट अ रेंटल इनकम. इंटरेस्ट इज नॉट अ बिजनेस इनकम. एंड इंटरेस्ट इज नॉट अ कैपिटल गेन. तो देखो इंटरेस्ट चारों में से कोई हेड में कवर नहीं है, तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, it will be taxable under the head income from other sources. Okay, so income from other sources एक कैसा head है कि income from other sources is a residual head of income. If there is the income is not taxed, it is not exempted, it is not covered in any other head, then income will be taxable under the head income from other sources. Okay, so see, you will get this material from the Xerox center on tomorrow. You collect in the morning. Uh, but see, let us refer it from the material that what we have to learn. Okay, so see, let us see. देखो, यूनिक टू इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो जैसे हमने पीजीबीपी में पढ़ा था बेसिस ऑफ चार्ज और विच इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर दिस ईयर, वैसे ये सेक्शन का मतलब ये चैप्टर का बेसिस ऑफ चार्ज वाला, जैसे in PGBP we have learned that section 28 is the basis of charge. So whatever incomes are described in section 28 are taxable under which, under their PGBP. Okay, but same way ये चैप्टर का under their capital इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का बेसिस ऑफ चार्ज कौन सा है, सेक्शन 56. okay, section 56 is the basis of charge for the income from other sources. so this section 56 is the basis of charge. okay, basis of charge. अभी देखो सेक्शन 28 क्या कहता है, it has given the list of the income that these are the income which are taxable under their PGB. but see, ये जो सेक्शन है सेक्शन 56 is not giving a list of the income, but it just gives conditions कि अगर कोई भी इनकम है, अगर वो इनकम ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो इनकम टैक्सेबल होगी कौन से हेड में, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम
other sources. So if any income is there and if it is satisfying the condition which is given in section 56, then the income will be taxable under the head income from other sources. Okay, so we have to understand that what are that condition. I already have discussed with you the condition, but see, let us discuss again it from the material. Okay, so can you see the material? Hello, on the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So see, what is the basis of chart? Section 56, what it says, that every income which is not taxable under any other head of income is taxable under the head income from other sources. तो एक ही लाइन में इसका बेसिस ऑफ चार्ज बताया है कि अगर आपके पास क्या है, वॉट एवर यू हैव अर्न that is a income. Okay, whatever you have earned is a income. Okay, मतलब under section 2 subsection 24 it is a income, and if it is not taxed any other head of income. Okay, तो कोई इनकम ऐसी है जो दूसरे कोई हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, वो कहाँ टैक्सेबल होगी? इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट सच इनकम शुड नॉट बी एग्जम फ्रॉम टैक्स. ओके, मतलब वो इनकम होनी चाहिए, इनकम शुड नॉट बी एग्जम फ्रॉम टैक्स. Okay, so the same thing what I have explained you, when the income is taxable under the income from other sources, income will be taxable under the income from other sources only if, देखो ये कंडीशन आपको याद रखनी है, is not clearly mentioned but there should be income. आपके पास इनकम होनी चाहिए, इनकम शुड नॉट बी अ एग्जम्प्टेड इनकम. मतलब एग्जम्प्ट हो तो શું થાય कि वो टैक्स ही नहीं लगता उस पर, तो इनकम एग्जम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, वो इनकम होनी चाहिए, इनकम एग्जम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, और इनकम शुड नॉट बी कवर्ड अंडर एनी अदर हेड. ओके, तो अगर दूसरे कोई हेड में वो इनकम कवर नहीं है, इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड under their income from other sources. This is what basis of charge section 56 is. Again, in other words, same thing is explained, that income from other sources, IFOS means income from other sources, is a residual head of income, and it brings within the scope all the taxable income which fall outside the scope of all four head of income. मतलब कोई भी इनकम है दूसरे कोई चार ऊपर के चार हेड में कवर नहीं हुई है, देन इनकम, मतलब इफ द इनकम इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर हेड, और वो इनकम एग्जम्प्ट भी नहीं है, एग्जम्प्ट नहीं है मतलब टैक्सेबल है, टैक्सेबल है, ये चार में से कोई हेड में कवर नहीं हुआ है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर विच हेड? इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो ये हेड में ये टैक्सेबल हो सकती है. ओके, दिस इज व्हाट बेसिस ऑफ चार्ज है. देखो यहाँ पे भी if we talk from the exam point of view, okay, फाइनल एग्जाम हो या इंटरनल एग्जाम हो, ओके, यहाँ पे से ये चैप्टर में से अगर फुल फ्लेज सम आता है, ओके, तो यहाँ पे आपको पूछा क्या जाएगा, यू फाइंड आउट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. मतलब आपको क्या पूछा जाता है सम में, यू फाइंड आउट दैट how much is the taxable income under their income from other sources, and what will be given to you? They will give you a list of the various incomes, they will give you the list of various expenses. Okay, so what is the format to find out the income under their income from other sources? See, as I have told you, it is not like a PGBP कुछ ऐड करना है, लेस करना है, ऐसा नहीं करना है. Here there is a simple format. You are supposed to जो आपको लिस्ट दिया है इनकम में से, इनकम में से यू आर सपोज टू फाइंड आउट दैट व्हिच इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. So suppose you find out that these four are the taxable income under this. Now in order to earn this income, if you have incurred any expenses, then that expenses are allowed as a deduction. So same हमारा PGBP वाला ही कॉन्सेप्ट काम करेगा. ओके, अलाउड एज ए डिडक्शन, मतलब टैक्सेबल इनकम को में से आपको अलाउएबल एक्सपेंसेस लेस करना है. तो कैसे आप सम सॉल्व करोगे? ये पूरी सब इनकम है, इसमें से आप टैक्सेबल इनकम आप लिख दोगे, इसका आप टोटल करोगे, ओके, और उसमें से अलाउएबल एक्सपेंसेस आप क्या करोगे? यू विल डिडक्ट दैट एक्सपेंसेस. तो ये मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई, ये टैक्स मतलब अलाउएबल एक्सपेंसेस हो गया, जिसमें से मैंने ये लेस किया. आई विल फाइंड आउट द इनकम अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. So it is very simple format to calculate the income under their income from other sources. कि आपको क्या करना है कि ये हेड में कितनी टैक्सेबल इनकम है, तो यू जस्ट
राइट डाउन दी टैक्सेबल इनकम अंडर दिस हेड, ये हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल इनकम का आप टोटल कर दो, वन बाय वन आप लिख दीजिए कि दीज आर दी टैक्सेबल इनकम, और उसमें से आपको क्या करना है, अलाउेबल एक्सपेंसेस जो है, वो अलाउेबल एक्सपेंसेस आपको यहाँ से लेस कर देना है, और ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो दिस इज द वे इन विच यू कैन फाइंड आउट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो अगर मोटा मोटी देखने जाए तो ये चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ये चैप्टर में हमें ये दो ही चीजें पढ़नी है कि विच इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड, दो चीज पढ़नी है। मतलब इफ आई समवन आस्क मी दैट you divide this chapter into two parts, then I classify this chapter in two part in this way, that what are the taxable under this head and taxable income under this head and what are the allowable expenses। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हेड में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है वो सभी इनकम हम पढ़ लेंगे, और उसमें से कौन कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है वो पढ़ लेंगे, एंड देन वी विल सॉल्व द फुल फ्लेज एग्जाम्पल। ओके, देन वी विल सॉल्व द फुल फ्लेज एग्जाम्पल। ओके, so it is very simple कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि विच इनकम्स आर टैक्सेबल। तो उसको, इसके लिए तो मैंने एक बेसिक थंब रूल बता दिया कि देयर इज अ इनकम, ओके, इनकम इज नॉट एग्जम्प्टेड इनकम एंड इट इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर हेड देन इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, ठीक है। और यही इनकम को अर्न करने के लिए आपने कोई खर्चा किया है तो ये सभी खर्चा यहाँ से डिडक्ट होगा, और ये दोनों में से का जो डिफरेंस है दैट इज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। So what we have to learn, so if someone asks me that you divide this chapter into two parts, so two part में we will learn this chapter what are the taxable income and which expenses are allowed as a deduction, okay। So in this way we will understand this chapter, okay। But see, before we start the taxable income on the under this head, which incomes are taxable and which expenses are allowed as a deduction, you must know that before we have to, ये हेड भी ऐसा है लाइक पीजीबीपी, मैंने आपको पीजीबीपी में भी पढ़ाया था कि व्हेनेवर वी कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये दो ही हेड ऐसे हैं, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेज, कि जिसमें मेथड ऑफ अकाउंटिंग रिलेवेंट है। तो रिलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात की गई है कि रिलेवेंस ऑफ मेथड ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट इट सेज, you see there are two kind of method of accounting that you know, one is the cash based accounting system, another one is the mercantile accounting system, okay। तो अगर कैश बेस्ड सिस्टम अगर आप फॉलो करते हो, सपोज इफ यू फॉलो द कैश बेस्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ओके, एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम बिजनेस बीजीबीपी, सॉरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो कैश बेस्ड सिस्टम में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इफ यू फॉलो द कैश बेस्ड सिस्टम देन ओनली दोज इनकम्स आर टैक्सेबल which are received during the previous year, received during the previous year, matlab whether it is actually earned in the previous year or not, that is irrelevant. What is important here, if assessee is following the cash based system, then which incomes are taxable, only those incomes are taxable which are received during the previous year, okay। और कौन कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा, only those expenses are allowed as a deduction which are actually paid during the previous year, okay। मतलब अगर कोई एक्सपेंस अगर आपने किया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा, एक्सपेंस का डिडक्शन कब मिलेगा, द एक्सपेंस शुड बी एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसका आपने एक्चुअली पेमेंट किया होना चाहिए, तो ही एक्सपेंस का डिडक्शन मिलता है। और इनकम तभी टैक्सेबल होती है व्हेन इनकम इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय यू ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, when you are following the cash based system of accounting। So if you follow the cash based system of accounting, then which incomes are taxable, income which are received during the previous year are taxable, and which expenses are allowed as a deduction, the expenses which are actually paid are allowed as a deduction। But suppose if you follow the mercantile system of accounting, okay, तो क्या होगा, तो आपको हर एक सम में दिया होगा ये असेसी कौन सी मेथड फॉलो कर रहा है, okay। So if assessee is following the mercantile system of accounting, then what, then which incomes are taxable, income which are earned during the previous year, मतलब उसको एक्चुअली रिसीव किया है या नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं है, the income which are earned during the previous year are taxable, and which expenses are allowed as a deduction, expenses which are due or expenses which are
incurred during the previous year are allowed as a deduction. So these expenses will be income will be taxable, and these expenses are allowed as a deduction. So here actual receipt of income or actual payment of expenses is irrelevant. Okay, ये irrelevant रहेगा, okay, so that we are supposed to take care. So it is same as the PGBP कि यहाँ पे भी आपको सम करते पहले आपको ध्यान में रखना है कि असेसी कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है. If assessee follow the cash based system, then only those incomes are taxable which are received during the previous year, and only those expenses are allowed as a deduction which are paid during the previous year. When the assessee is following the cash based system. But if the assessee is following the mercantile system of accounting, then actual receipts से कोई लेना देना नहीं है. Only those incomes will be taxable which are earned during the previous year, and only those expenses are allowed as a deduction which are actually due or incurred by you during the previous year. Okay, so the same thing is mentioned in your material. Let us see. Under the PGBP, देखो, income chargeable under the head income from other sources has to be computed in accordance with the method of accounting रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द असेसी. मतलब असेसी कौन सी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है उसके ग्राउंड पे, उसके बेस पे यहाँ इनकम कंप्यूट की जाती है. अगर असेसी कैश सिस्टम फॉलो करता है तो क्या देखना है, विच इनकम्स आर टैक्सेबल, इनकम विच आर शैल बी टैक्सेबल ऑन कैश बेसिस. कैश बेसिस का मतलब which you have actually received are taxable. Okay, or if assessee is following the mercantile system of accounting, then which incomes are taxable, only those incomes are taxable which are accrued during the previous year, मतलब which is earned by you during the previous year. So those income which you have earned during the previous year are taxable. Okay, now देखो ये डीम डिविडेंड वाला पॉइंट आप कैंसिल कर देना. आपके हाथ में कल मटेरियल आए तो ये पॉइंट आप कैंसिल कर देना. हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि डीम डिविडेंड इज हैविंग नो इंपोर्टेंस नाउअडेज. ओके, वी विल स्टार्ट. तो सी वी हैव डिस्कस्ड दैट यहाँ पे पहले पीजीबीपी में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, मतलब व्हेन द इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. ओके, वो हमने पढ़ा. Then we have discussed that here method of accounting is relevant. Okay, so whenever we compute the income under the head income from other sources, at that time the method of accounting is relevant that we have discussed. Okay, now as I told you, we will discuss this chapter in two parts. First of all, we will learn that which incomes are टैक्सेबल अंडर दिस हेड. ये देखो हम तीन पार्ट में चैप्टर पढ़ने वाले हैं. विच इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर दिस हेड. ओके, दूसरा मैंने आपको बताया विच एक्सपेंसेस आर अलाउड एज ए डिडक्शन अंडर दिस हेड. डिडक्शन अंडर दिस हेड, कौन कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलेगा. ओके, and third one, which expenses are not allowed. Not allowed से डिडक्शन. ये भी आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो ये चैप्टर हम पढ़ेंगे तीन पार्ट में. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दैट विच इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर दिस. Then we'll discuss which expenses are allowed as a deduction, and then we discuss which expenses are not allowed as a deduction. Okay, so these three part or 3 points that we are supposed to learn. Okay, now we'll go ahead same as PGBP. First of all, we'll understand that under this head which incomes are taxable. कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है. तो इसके लिए मैंने आपको एक थंब रूल तो बता दिया कि कोई भी इनकम है, इफ इट इज सेटिस्फाइंग दिस क्राइटेरिया, इफ देयर इज ए
इनकम, अगर वो कौन है, जो भी आपको रिसिप्ट हुई है वो आपको इनकम है, और दैट इनकम इज नॉट एग्जम्प्टेड इनकम। वो इनकम कैसी है? इनकम है, इनकम एग्जम्प्टेड इनकम नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ एग्जम्प्टेड इनकम एंड इट इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर हेड। तो दूसरे कोई हेड में वो कवर नहीं। ओके, इफ दीज थ्री क्राइटेरियाज आर सेटिस्फाइड बाय द इनकम, तो ये तीनों क्राइटेरिया कोई भी इनकम सेटिस्फाई करती है तो वो इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। तो ये तीनों क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता दिया। इफ देयर इज इनकम, इट इज नॉट एग्जम्प्टेड इनकम एंड इट इज नॉट कवर्ड इन एनी अदर हेड, देन द इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बट स्टिल here in this chapter, in this section 56, it is a basis of charge, and in this itself the list of certain incomes are given specifically। मतलब देखो, कोई भी इनकम है, अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करती है तो IFOS में टैक्सेबल होगी होगी, लेकिन फिर भी कुछ इनकम्स ऐसी है which create the confusion that under which head it is taxable। okay, so it requires a discussion, and that's why that incomes are specifically discussed in this head, that these are the income which are always taxable under the head income from other sources। So we will going to discuss the various income one by one, that which incomes are taxable under these head। देखो, अगर ये टेबल आपने देख लिया, अगर ये टेबल में मैंने क्या किया है, ये पूरे चैप्टर में जो जो इनकम टैक्सेबल होती है ये चैप्टर में, ठीक है, दैट इनकम्स आर कवर्ड इन दिस टेबल, और यही हमें वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना है। ओके, तो दिस इज, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ समरी। ओके, कि यहाँ पे आपको वन बाय वन इनकम देखनी है, और फिर यही इनकम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जहाँ जहाँ डिस्कशन की जरूरत है वो इनकम ये पैम्पलेट में आगे जैसे देखते होंगे। हाँ, जैसे पहला पॉइंट है डिविडेंड, तो डिविडेंड इज डिस्कस इन डिटेल हियर। ओके, डिविडेंड इज डिस्कस इन डिटेल हियर, यहाँ पे डिविडेंड डिस्कस किया है डिटेल में। फिर यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कैजुअल इनकम, तो कैजुअल इनकम इस डिटेल में डिस्कस यहाँ पे किया है कि कैजुअल इनकम कब टैक्सेबल होगी। सपोज द थर्ड पॉइंट इज मेंशन हियर इंटरेस्ट। ओके, सॉरी, अनडिस्क्लोज इनकम सोर्सेज। तो अनडिस्क्लोज सोर्सेज वाला जो है, तो वहाँ कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, तो वो डिस्कस नहीं किया है। एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, डिस्कशन की जरूरत नहीं, डिस्कस नहीं किया। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आगे ये पैम्पलेट में डिटेल में डिस्कस किया होगा। ओके, और जो नहीं है वो आपको यहाँ पे ही समझ लेना है कि ये इनकम ये हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है। और जो पॉइंट में डिटेल डिस्कशन है वो पॉइंट्स हमें डिटेल में पढ़ना, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे, तो अभी मैं आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, मुझे पता है कि आगे क्या कौन सी चीज डिटेल में डिस्कस की है। ओके, वैसे तो आपको मैंने बता दिया कि अगर कोई भी इनकम है, इफ इट इज सेटिस्फाइंग दिस क्राइटेरिया, इफ इट इज इनकम, it is not exempted and not covered in any other head, then it is always taxable under the head income from other sources। But still there are certain incomes which are specified here, okay, and these incomes are always taxable under the head income from other sources। Like, see, you can see the dividend। okay, so dividend is always taxable under the head profit and gains of business and profit। देखो, पहले डिविडेंड, अगर जब आप सेकेंड ईयर बीकॉम में थे तब आपने पढ़ा होगा कि डिविडेंड इज एग्जम्प्टेड इनकम। ओके, बट नाउ dividend is a taxable income, okay, under the head income from other sources। Suppose if you receive the dividend, so either if you receive the dividend from the Indian company or from the foreign company or from whatever source, if you are receiving the dividend, okay, तो डिविडेंड आपको कभी भी मिलता है, तो डिविडेंड इज कि आपको क्या टैक्स ट्रीटमेंट याद रखनी है कि डिविडेंड इज ऑलवेज टैक्सेबल। डिविडेंड हमेशा टैक्सेबल रहता है। So this is the treatment that you are supposed to understand, कि dividend is always taxable। okay, तो dividend हमेशा taxable होता है। okay, so dividend is always taxable। okay, this is the tax treatment for the dividend। the dividend is always taxable। so this is the tax treatment। आगे जब आएगा डिटेल में, so we'll discuss, जब when I will reach on the page number 2, दिस आई विल डिस्कस विथ यू इन डिटेल। जो पॉइंट डिटेल में आएगा हम डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखो, इफ यू हैव रिसीव द डिविडेंड, तो डिविडेंड अगर आपको मिलता है तो डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड
अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ये टैक्सेबल होता है, इतना आप अभी याद रखिए। नाउ सपोज इफ यू हैव अर्न द कैजुअल और नॉन रिकरिंग इनकम, ओके, दिस इज लाइक विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कैजुअल इनकम जो है नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है, ओके, तो दैट इज द कैजुअल इनकम। तो कैजुअल इनकम विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स और ये सब जो इनकम है कैजुअल इनकम, that is also always taxable under the head income from other sources. This also we will going to discuss in detail. जो डिटेल में डिस्कस करने वाला है, जब पॉइंट आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आगे हमें डिटेल में डिस्कस करना है, इसको भी आगे हमें डिटेल में डिस्कस करना है, ओके। देखो इसके बारे में कोई आगे डिस्कशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ही समझ लेना है इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, ओके। तो ये प्रॉब्लम कब आता है, अनडिस्क्लोज सोर्सेज वाला, ओके। दिस पॉइंट वी विल गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल, आगे आने वाला है डिटेल में, ओके। ये भी पॉइंट आगे डिटेल में आने वाला है, जब आएगा तब हम पेज नंबर 2 पे पहुंचेंगे तब हम देखेंगे। लेकिन कुछ इनकम यहाँ पे ऐसी है जो आगे डिस्कस नहीं की गई, यहाँ पे ही हमें समझ लेंगे, तो ये याद रखें। तो इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, अभी अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम क्या होती है, व्हाट इज द इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज। देखो ये इनकम वैसे कोई दिखाएगा नहीं, ठीक है, लेकिन जब किसी के यहाँ इनकम टैक्स की रेड होती है और उसको पूछा जाता है कि भाई फ्रॉम वेयर यू हैव अर्न दिस इनकम, एंड इफ यू आर अनेबल टू गिव द सोर्स दैट आई हैव अर्न द इनकम फ्रॉम दिस सोर्स, ओके, और तो दे मेक दिस इनकम टैक्सेबल अंडर दिस हेड। नॉट ओनली दैट, ये इनकम जब पकड़ी जाती है दे चार्ज द टैक्स, ओके, दे चार्ज द टैक्स एट द रेट 78%। ये अनडिस्क्लोज इनकम पे टैक्स कितने परसेंटेज, ये तो अभी हमें टैक्स तो कैलकुलेट करना नहीं है, बट यू मस्ट नो कि व्हेनेवर गवर्नमेंट फाइंड, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फाइंड करता है कि आपने मतलब आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेड हुई, आपको बहुत पूछा गया कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम, एंड यू आर अनेबल टू एक्सप्लेन द सोर्स ऑफ द इनकम, दैट फ्रॉम वेयर दैट मनी हैज कम, ओके। सो इन दैट केस इफ यू अर्न दिस काइंड ऑफ इनकम, सो वो लोग टैक्सेबल करेंगे आपके लिए अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और ये इनकम पे सेपरेट टैक्स लिया जाएगा एट द रेट 78%। यू कैन सी, एक मेरा एग्जांपल है, वहां पे आप देख सकते हो कि ये देखो ये एक एग्जांपल है, हमें करना है ये एग्जांपल। तो यहाँ पे अब देखोगे एग्जांपल में ये अनडिस्क्लोज्ड इनकम, देखो ये वाला पॉइंट नंबर 16, the person has earned the income of rupees 65,000 but he is unable to explain the source, okay. Now you can see in the solution the income from undisclosed sources is taxable at what rate, at the rate 78%. तो दिस यू मस्ट नो, ओके, कि भाई ये इनकम टैक्सेबल भी होगी, और टैक्सेबल होगी तो कौन से रेट से होगी, इट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 78%, ओके। दिस इज यू मस्ट नो दैट दिस इनकम विल बी टैक्सेबल एट द रेट 78%. So whenever you earn the undisclosed income, so undisclosed income are always taxable at the rate 78%. But see, so this is only a discussion that you must know that income from undisclosed sources is taxable at the rate 78%. Okay. Now see, let us come to our material. Okay. Income from agriculture land situated outside India. See, you all know if there is a agriculture income, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हो तो एग्रीकल्चर इनकम की टैक्स ट्रीटमेंट क्या है कि इफ द एग्रीकल्चर इनकम इज अर्न बाय यू, ओके, एंड इट इज फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, ओके, इफ यू अर्न द एग्रीकल्चर इनकम, ओके, एंड एग्रीकल्चर इनकम इज अर्न बाय यू फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया, इंडिया में जो एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है वहां से अगर आप एग्रीकल्चर इनकम अर्न करते हो तो यू नो इट्स टैक्स ट्रीटमेंट। क्या होगी टैक्स ट्रीटमेंट, हेलो, ओके, तो होती है एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम दी विच एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जाम, तो द एग्रीकल्चर इनकम विच इज अर्न फ्रॉम द लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया,
If you are earning the agriculture income from the land which is situated in India, it is always exempt from that. But suppose if you earn the income, agriculture income, from the land which is situated आउटसाइड इंडिया, देखो एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया से आपको यहाँ आ रही है, सपोज मेरी अमेरिका में कोई फार्मिंग की एक्टिविटी हो रही है और वहां से मैं यहाँ इनकम वो लेके आता हूँ और वहां पे अर्न करता हूँ, तो वो इनकम मेरे रेसिडेंशियल स्टेटस, आपने चैप्टर पढ़ा होगा रेसिडेंशियल स्टेटस के ग्राउंड पर, अगर मेरा रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, तो भले दुनिया के कोई भी कोने में मैंने इनकम अर्न की है, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड। ओके, so suppose I have earned the agriculture income and that agriculture income I have earned from where? From the land which is situated outside India. तो ये इनकम आपके लिए टैक्सेबल होगी। Now see, this question arises that under which head it is taxable. So you must know that if you receive the agriculture income from the land which is situated outside India, and this income will be always taxable under the income from other sources. इसका कोई आगे डिस्कशन नहीं है, ये कोई अनडिस्क्लोज इनकम का भी आगे कोई डिस्कशन नहीं आएगा। ओके, वैसे एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया से अगर आपको इनकम हो रही है तो इसका कोई आगे डिस्कशन नहीं। यू मस्ट नो दैट if I have earned the agriculture मतलब income from the land which is situated outside India, then this income will be always taxable under the head income from other sources। ठीक है, सेम वे सपोज इफ यू आर MP और MLA, ओके, ये तो सबके लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आप MP हो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके, या तो फिर MLA हो, तो अगर MP और MLA है, देखो MP और MLA को अगर कोई इनकम मिलती है, इफ दे आर रिसीविंग व्हाट, दे आर रिसीविंग द रेम्यूनरेशन। ओके, सो दे आर रिसीविंग टू काइंड ऑफ इनकम। जनरली गवर्नमेंट से दो टाइप की इनकम उसको मिलती है। एक उनको मिलता है डेली अलाउंस, मतलब टू मीट देयर डे टू डे एक्सपेंसेस दे आर रिसीविंग द डेली अलाउंस। अनदर थिंग इज व्हाट, दे आर रिसीविंग द रेम्यूनरेशन। ओके, so see, suppose if they are a MP or MLA and if they receive the daily allowance, तो डेली अलाउंस की ट्रीटमेंट क्या होगी? देखो सेक्शन 10 में आता है कि डेली अलाउंस रिसीव्ड बाय द MP और MLA इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो MP और MLA को डेली अलाउंस मिलता है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? इट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बट सपोज MP और MLA रिसीव्स द रेम्यूनरेशन, देखो वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है। अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता तो उसका रेम्यूनरेशन कहाँ टैक्सेबल हो जाता? अंडर द हेड सैलरीज। लेकिन यहाँ उसके और गवर्नमेंट के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं है, ही जस्ट रिसीव द रेम्यूनरेशन। ओके, वो 5 साल तक रहेगा, उसका रेम्यूनरेशन वो रिसीव करता है पर मंथ। तो वट एवर रेम्यूनरेशन इफ MP और MLA इज रिसीव्ड, तो whenever you whatever is the term, so far as you are MP or MLA or you are receiving the remuneration from the government, तो ये it will be taxable under the head income from other sources। Okay, so suppose if you receive the any daily allowance as a MP or MLA, it is exempt from tax, but if you receive a remuneration then from the government, okay, then MP और MLA अगर कोई remuneration receive करता है तो इसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? इसकी एक टैक्स ट्रीटमेंट है कि remuneration received by the MP or MLA is always exempt from tax, sorry, it is always taxable under the head income from other sources। Okay, so suppose if you are MP or MLA or if you are receiving the remuneration, it will be taxable under the head income from other sources। Suppose if you are a director, देखो डायरेक्टर को भी ऐसा होता है कि आप कोई कंपनी में डायरेक्टर हो। ओके, देखो आप डायरेक्टर हो, then there are two possibilities। एक कुछ डायरेक्टर कैसे होते हैं? देखो there are two kinds of डायरेक्टर, अच्छे से समझिए। ये कंपनीज एक्ट की प्रोविजन है कि डायरेक्टर्स कैन बी अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर कैन बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ओके, अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो मतलब आप कंपनी के एम्प्लॉई ही हो, मतलब आप कंपनी में सपोज मैनेजिंग डायरेक्टर होता है
ओके, एमडी या होल टाइम डायरेक्टर, वो पूरे दिन कंपनी में रह के काम करता है एम्प्लॉय की तरह। तो whenever they receives, if you are an executive director and if you receives the salary, and देखो आप एग्जीक्यूटिव हो मतलब क्या है, आप एम्प्लॉय हो, एंड इफ यू रिसीव द सैलरी, ओके, तो सैलरी विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज। अगर डायरेक्टर को अगर सैलरी मिलता है, एंड इफ ही इज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ओके, कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, मतलब लाइक ही इज अ होल टाइम डायरेक्टर और ही इज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, और एमडी और होल टाइम नहीं है, बट ही इज स्टिल एग्जीक्यूटिव, एंड इफ ही इज रिसीविंग द सैलरी इट विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरीज, नॉट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, बट सी डायरेक्टर को कंपनी में से दो तरीके के रेम्यूनरेशन मिलते हैं। एक, उसका काम करने का अगर एग्जीक्यूटिव है उसको सैलरी भी मिलेगा, और देखो साल में आपको पता है कि कुछ बोर्ड मीटिंग होती है, और बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के भी डायरेक्टर को पैसे मिलते हैं, जिसको कहा जाता है सीटिंग फीस। जिसको क्या कहा जाता है, सीटिंग फीस। नाउ सपोज इफ यू आर एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव, बट in the capacity of director, if you receive the sitting fees, then the sitting fees will be always taxable under which, under their income from other sources। ओके, तो देखो अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो उसको सैलरी भी मिलेगा और सीटिंग फी भी मिलेगा। उसकी सैलरी कहाँ टैक्सेबल होगी, अंडर देयर सैलरीज टैक्सेबल होगी। लेकिन उसने सीटिंग फी रिसीव की है, कहाँ टैक्सेबल होगी, अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और अगर आप कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, देखो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसको कहते हैं, वो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व ही नहीं होता, वो सिर्फ कंपनी की मीटिंग अटेंड करने आता है। ओके, तो उसको कहा जाता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और उसको सैलरी नहीं मिलता, वो सिर्फ कंपनी से क्या रिसीव करता है, ही इज रिसीविंग द सीटिंग फीस। तो देखो अगर कोई भी डायरेक्टर है, इधर योर डायरेक्टर इज एग्जीक्यूटिव और योर डायरेक्टर इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव, बट इफ ही रिसीव्स द सीटिंग फीस विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर विच, अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। But if the director receives the salaries, then salary will be taxable under which head, under the head salary। Okay, so that you should have to keep in your mind that if you are a director, and as the director, if you are receiving the sitting fees, or then the sitting fees will be taxable under their income from other source। But if the director is an executive and if he is receiving a salary, then salary will be always taxable under their income from salaries and not under their income from other sources। Income from other sources में डायरेक्टर की कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, ओनली सीटिंग फीस। ओके, तो सीटिंग फीस विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, सपोज ग्रेचुइटी रिसीव्ड बाय द डायरेक्टर, देखो ग्रेचुइटी इज आल्सो काइंड ऑफ अ सैलरी। ओके, तो अगर आप कोई कंपनी में डायरेक्टर, ओके, और लेकिन आप एम्प्लॉय नहीं हो और आपको ग्रेचुइटी मिलती है, ओके, तो इट इज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय हो तो कहाँ टैक्सेबल होगा, कहाँ होगा टैक्सेबल, सैलरीज में। ठीक है, तो ये होता है कि अगर आप कंपनी में मतलब डायरेक्टर हो, तो डायरेक्टर होने के साथ एम्प्लॉय हो या नहीं, एम्प्लॉय हो तो आपको जो भी सीटिंग फी मिली वो तो अदर सोर्सेज में होगी। लेकिन अगर आपने ग्रेचुइटी रिसीव की तो आपको चेक करना है कि डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं। अगर एम्प्लॉय है तो सैलरी में टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय नहीं है इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो ये इंटरेस्ट ऑन दी एम्प्लॉय इज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यूआरपीएफ। ओके, इंटरेस्ट ऑन दी एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम दी अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ओके, देखो ये हम बिजनेस के तरीके से नहीं देखेंगे आज, शायद एक दो क्लास में मैंने प्रोविडेंट फंड का पॉइंट पढ़ाया हुआ है। ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस पॉइंट इन ऑल द क्लासेस, प्रोविडेंट फंड वाला, है ना। प्रोविडेंट फंड आपको मैंने पढ़ाया है, यस सर, आज ही पढ़ाया है, इसमें तो आज ही पढ़ाया मैंने। ठीक है, और F9 में मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया। तो ये जो प्रोविडेंट फंड होते हैं आप समझिए, तो प्रोविडेंट फंड क्या होता है, तो प्रोविडेंट फंड हाउ दैट मैकेनिज्म वर्क्स यू ऑल नो। तो प्रोविडेंट फंड चार टाइप के होते हैं, एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सेकंड वन इज द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, ओके, थर्ड वन is the statutory provident fund, and the fourth one
इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ओके, टोटल 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। ओके, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो बहुत पॉपुलर है, जिसको एक अच्छे नाम से हम जानते हैं, पीपीएफ। ओके, पीपीएफ में कौन इन्वेस्टमेंट करता है? देखो, जो लोग जॉब नहीं करते ना, वो लोग को ऐसा लगता है, और जॉब भी करते हैं तो भी यहाँ सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। अगर इंडिया में कोई चीज पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है अगर आपके पैसे इन्वेस्टमेंट करने पे, तो दैट इज दी पीपीएफ। ओके, तो और पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने से हमें एटीसी में भी डिडक्शन मिलता है। ओके, लेकिन पीपीएफ में क्या होता है, सिर्फ एक जन का कॉन्ट्रीब्यूशन। सपोज समझ लो कि मुझे लग रहा है कि भाई आई एम हैविंग सम एक्सेस मनी एंड दैट आई वांट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो हर साल में कुछ पैसे मेरा अकेले का, सपोज हर साल में 1 लाख रुपया मेरे पीपीएफ में रखता जाता। ओके, तो सब सपोज मेरी जॉब 20 साल में करूंगा, तो मतलब तब तक मेरे को सैलरी आ रही है एमएस यूनिवर्सिटी से, तो हर साल सपोज मैं 1-1 लाख रुपया रखता हूँ, तो रिटायरमेंट तक मेरे 20 लाख रुपये पीपीएफ में जमा हो जाएंगे। वो एक फायदा मेरे को होगा, इस पे इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, एक दूसरा फायदा होगा। और तीसरा फायदा ये मेरे को होगा कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसका मुझे अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिलेगा। और देखो, पीपीएफ में से जब भी सपोज समझ लो 20 लाख रुपए मैंने 20 साल तक रखा, ओके, और 20वें साल में मुझे 20 लाख की जगह 25 लाख मिलता है, ये 5 लाख मुझे क्या मिला? दैट इज दी इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट दैट आई हैव रिसीव, देखो यहाँ सिर्फ आपके अकेले का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है। सो वॉट एवर इंटरेस्ट यू आर रिसीविंग, दैट इंटरेस्ट इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो आपको इंटरेस्ट मैच्योरिटी पे जो मिलता है, दैट इज द एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन केस ऑफ पीपीएफ। सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सपोज मेरे जैसे कुछ कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और वो जॉब कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, सपोज हर साल मेरी सैलरी से मैं 5,000 पीएफ में देता हूँ, मेरा एम्प्लॉयर भी 5,000 देता है, तो हर साल मेरे अकाउंट में 10,000 जमा होंगे, मतलब हर महीने। तो सपोज एक साल का 20,000 जमा होता है, 1,20,000 जमा होता है। ओके, तो सपोज मेरी 10 साल मेरी जॉब थी, तो मैंने उधर जमा कितना करवाया? 12 लाख रुपये। अब जब मैं रिटायर हुआ तो 12 की जगह मुझे 15 लाख मिला। ओके, मतलब ये पैसा जो है उस पर मुझे इंटरेस्ट 3 लाख मिला। मैंने जमा कितना करवाया था? 12 लाख। और हाउ मच आई हैव गेट? आई हैव गेट दी 15 लाख। So 3 lakh interest I have received from the statutory provident fund. So this interest is also exempt. Okay. अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है, मतलब इनका आप क्या होता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, तो आप आपकी सैलरी से सपोज 5,000 देते हो, आपका एम्प्लॉयर भी 5,000 देता है, और वो ये पूरा 10,000 आपका जाता है आपके पीएफ अकाउंट में। और वो पीएफ अकाउंट कैसा है? वो पीएफ अकाउंट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया है, इसको इसीलिए पीएफ अकाउंट को रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बोला जाता है। तो सपोज आपने 10 साल तक पैसा जमा करवाया, एक साल का होता है 1,20,000, तो 10 साल तक आपने जमा करवाया 1,12,00,000 रुपये। ओके, और आपको 15 लाख रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, तो ये 15 लाख में से ये 3 लाख आपको क्या मिला? इंटरेस्ट। सो दिस इंटरेस्ट इज ऑल्सो एक्सेप्ट। लेकिन अगर आप कोई प्राइवेट जगह पे जॉब करते हो और आपका एम्प्लॉयर आपका पैसा कहाँ जमा करवा रहा है? आपका एम्प्लॉयर आपका पैसा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जमा करवा रहा है। मतलब यू कैन सी हियर इन केस ऑफ आरपीएफ, in case of statutory provident fund, and in case of public provident fund, whatever interest you are receiving at the time of retirement, that is exempt and exempt. But if there is a provident fund, okay, which is a unrecognized provident fund, suppose आपने आपकी सैलरी से 5,000 दिया, आपके एम्प्लॉयर ने भी 5,000 जमा करवाया, ठीक है, मतलब आप साल के, मतलब एक महीने के 10,000 जमा करवाते हैं, मतलब साल के 1,20,000 जमा करवाते, ठीक है, मतलब 10 साल में सपोज आपने 12 लाख जमा करवाया और आप रिटायरमेंट के टाइम पे आपको 15 लाख मिला। ओके, तो 15 लाख मिला, मतलब यहाँ पे ये 3 लाख आपको इंटरेस्ट मिला। नाउ यू कैन सी योर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन बोथ आर सेम। तो ये 3 लाख पे मुझे 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिला, 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मुझे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पे मिला। ओके,
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट आपको मिलता है वो टैक्सेबल होता है अंडर द हेड सैलरीज। मतलब एम्प्लॉयर, मतलब ये 3 लाख होता है ना, वो एग्जाम नहीं होता है। देखो बाकी सभी प्रोविडेंट फंड में एग्जाम होता है, बट इन केस ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इफ यू रिसीव एनी इंटरेस्ट फ्रॉम द अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपने पूरी लाइफ किया, उस पे कितना इंटरेस्ट मिला आपको? ओके, 1.5 लाख। और एम्प्लॉयर ने जितना कंट्रीब्यूशन दिया उस पे कितना इंटरेस्ट मिला? 1.5 लाख। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का जो भी इंटरेस्ट है दैट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज, और एम्प्लॉई का मतलब आपका खुद का जो कंट्रीब्यूशन आपने पूरी जिंदगी किया और उस पे आपको 1.5 लाख इंटरेस्ट मिला, दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। So this is what this point says, that interest on the employees contribution towards the URPF, मतलब अगर आपने अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कोई कंट्रीब्यूशन दिया है और वो कंट्रीब्यूशन पे ऑन द एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी इफ यू रिसीव एनी इंटरेस्ट, देन दैट इंटरेस्ट, दिस इंटरेस्ट यू कैन सी हियर, दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बाकी सभी प्रोविडेंट फंड में ये एग्जाम्प्ट रहता है, यू कैन सी, बट यूआरपीएफ में वो टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन वाला जो पोर्शन है उसका इंटरेस्ट सैलरीज में टैक्सेबल होता है, और एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन वाला जो पोर्शन है उसका इंटरेस्ट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट है दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, बेटा। Yes, Now sir. the next point is the, देखो जो पॉइंट डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, वो यहाँ पे इतना डिटेल जो आगे डिटेल में दिए है वो हम डिटेल में आगे जाएंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दी, ये वाला मैं ले लेता हूँ, ठीक है। इनका इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। देखो आपको इंटरेस्ट मिलता है इनकम टैक्स रिफंड पे, ओके। ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इनकम टैक्स अगर आपने टीडीएस ज़्यादा पे कर दिया, ठीक है, तो आपको इनकम टैक्स में से रिफंड मिलता है, ओके। और वो रिफंड इंटरेस्ट के साथ मिलता है, और जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है दैट ऑन इनकम टैक्स रिफंड दैट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। फॉर एग्जांपल समझ लो कि सपोज दिस इज माय प्रीवियस ईयर, से 2021-22, ये मेरा क्या है? प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी मेरा एम्प्लॉयर क्या कर रहा है कि भाई सपोज एमएस यूनिवर्सिटी से मेरा 1 लाख रुपया सैलरी है, तो हर महीने मेरा एम्प्लॉयर 10-10 हज़ार मेरी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट करके वो कहाँ डिपॉजिट करवा रहा है? इट इज डिपॉजिटिंग विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे पैन नंबर के सामने मेरे सैलरी से डिडक्ट, मतलब मेरा 1 लाख सैलरी है, ओके, तो आई विल नॉट रिसीव 1 लाख, बट आई विल आफ्टर द टीडीएस आई विल रिसीव 90,000 रुपीज। तो हर महीने मुझे 90,000 रुपीज मिलते हैं। एक्चुअली मैं कमा कितना रहा हूँ? 1 लाख, तो टैक्स 1 लाख पे लगेगा, टैक्स 1 लाख पे ही लगता है, क्योंकि आप कमा 1 लाख रहे हो। आपकी सैलरी से 10,000 कट गया टीडीएस के फॉर्म में। नाउ हाउ मच यू हैव रिसीव? 90,000 रुपीज। एवरी मंथ यू आर रिसीविंग द 90,000 एंड 10,000 टीडीएस इज गेट डिपॉजिटेड इन दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो पूरे 12 महीने में आपके एम्प्लॉयर ने वहां पे 1,20,000 रुपया टीडीएस आपके अकाउंट में जमा करवा दिया। फिर ये असेसमेंट ईयर आया, ये प्रीवियस ईयर था, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग असेसमेंट ईयर आया 22-23। फिर मैंने ये साल में जो जो इनकम अर्न की थी वो इनकम का मैंने टोटल किया असेसमेंट ईयर में, उसमें से जो जो डिडक्शन देने थे वो डिडक्शन दे दिए। फिर इस पर मैंने टैक्स कैलकुलेट किया, और टैक्स कैलकुलेट करने पे मुझे पता चला कि आई हैव पेड, मतलब आई एम लायबल टू पे ओनली 1 लाख रुपीज टैक्स। मतलब आ વર્ષનો મારો ટેક્સ કેટલો થાય? તો કે 1 લાખ રૂપિયા। મારા એમ્પ્લોયરે મારી સેલેરીમાંથી કાપીને કેટલો જમા કરાવી દીધો છે? 1,20,000। હવે મારો ઓલરેડી 1,20,000 ટેક્સ પ્રીવિયસ યરમાં મારા એમ્પ્લોયરે ત્યાં પે કરી દીધો છે। नाउ एंड आई एम लायबल टू पे ओनली 1 लाख रुपीज, ओके। मैंने एक्चुअल इनकम पे, ये क्या है, हर महीने डिडक्ट होके वहां जमा होता रहता था। the actual income पे मैंने टैक्स कैलकुलेट किया आफ्टर गिविंग द डिडक्शन, so I come to know that I am liable to pay only 1 lakh rupees. So I have already paid the 1,20,000 tax, and I am liable to pay only 10,000. So sorry, 1 lakh. So in this case I will get the refund of rupees 20,000. तो यहाँ मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रिफंड मिलेगा। और देखो ये रिफंड है ना,
वो आपको गवर्नमेंट सिर्फ रिफंड नहीं देगी, आपको ये पैसों के साथ रिफंड को इंटरेस्ट के साथ दिया जाएगा। ओके, how to calculate the interest, that is a different thing, but you at present you just keep in your mind that you will receive the, so instead of the 20,000, देखो income tax refund is not your income, તમારા પૈસા તમે ભર્યા હતા ને એ પૈસા પાછા મળ્યા, refund is not income, but 20 की जगह 20,000 प्लस आपको 2,000 इंटरेस्ट मिला, मतलब आपको गवर्नमेंट से 22,000 रिसीव किया। तो यहाँ 2,000 आपका क्या है, दिस इज योर इनकम एंड दिस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को दिया था 1,20,000, 1 लाख आपका टैक्स एग्जिस्ट हो गया, आपको 20,000 गवर्नमेंट से वापस देना था, गवर्नमेंट ने ब्याज के साथ आपको 22,000 दिया, तो ये 2,000 आपका इंटरेस्ट है। So this interest will be taxable under which head? Again this income, the interest on the income tax return will be always taxable under which head? So suppose during the previous year if you receive any interest on the income tax refund, then it will be always taxable under the head income from other sources. So if you receive this kind of interest, then this interest will be taxable under the head income from other sources. Okay. Now see, winning from lottery and casual income both are same. ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है, और इसको आगे ये चैप्टर में ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, सो दैट वी विल डिस्कस एट दैट टाइम, एट प्रेजेंट आई एम नॉट डिस्कसिंग। ओके, नाउ सी, सपोज इफ यू आर रिसीविंग द रेंट फ्रॉम द वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड, ओके, सपोज आपके पास खाली ग्राउंड पड़ा है, देखो यू शुड कीप इन योर माइंड कि अगर आपके पास एक खाली प्लॉट पड़ा है और ये प्लॉट को आप रेंट पे देते हो, ओके, अंडर विच हेड दिस इनकम विल बी टैक्सेबल? देखो इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस, इट इज नॉट ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। देखो समझ लो आई एम हैविंग दिस प्लॉट एंड इट इज अलोंग विद द बिल्डिंग, एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के आगे ये सब जगह है, मैंने बिल्डिंग को भी किराए पे दिया और ये प्लॉट को भी किराए पे दिया, so I am letting out both things. तो अगर if the building or if the plot is appertaining to building, मतलब it is attached to a building, and if you are letting out the building as well as the plot, तो ये rental income कहाँ taxable होगी? The income will be taxable under the income from house property. If you are letting out the building, ओके, आपने किराए पे क्या दिया? बिल्डिंग ही दिया, लेकिन बिल्डिंग के आगे प्लॉट था, वो बाय डिफॉल्ट किराए पे गया, तो यू आर बिल्डिंग, लेटिंग आउट द बिल्डिंग अलोंग विद द प्लॉट, तो ये वैकेंट प्लॉट नहीं है, प्लॉट विद द बिल्डिंग, सो इन दिस केस इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ अनदर सिचुएशन यू शुड अंडरस्टैंड कि सपोज इफ यू आर हैविंग द प्लॉट, देयर इज नो बिल्डिंग अटैच टू द प्लॉट, और आपने क्या किया है कि ये प्लॉट को आपने बना दिया है पार्टी प्लॉट, ओके, आपने एक पार्टी प्लॉट बना दिया है, इसको हर रोज आप डेकोरेट करके शादी करने के लिए किसी को किराए पे देते हो। मतलब देखो ये प्लॉट को किराए पे देना, मतलब कोई एक पर्सन को पूरे साल के लिए किराए पे नहीं दे दी, अब रोज अलग अलग लोगों को किराए पे देते हो और किराया वसूल करते हो, तो यहाँ पे आपको इनकम मिल रही है, तो ये आपका बिजनेस हो गया है। So this income will be taxable under which head? Under their profit and gains of business and profits. Okay. So if I let out the building, if I let out the plot along with the building, then the income from the plot will be taxable under the head house property. Okay. But if I let out a plot to a different person on a different day, okay, then आई एम अर्निंग दी, और यहाँ पे क्या है, मैं उसको डेकोरेट करके लोन बोन बना के सब किया है मैंने, तो ये मेरी इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है। लेकिन समझ लो कि मेरे पास एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है, ठीक है, पूरे साल वो खाली पड़ा रहता है, या तो फिर कोई किराए पे आता है तो मैं इसको 2-3 महीने के लिए, सपोज समझ लो कि हाँ भाई શિયાળો આવ્યો ને આ ટિબેટિયન લોકો અહીં આગળ પોતાનું દુકાનો ખોલવા માગે છે ને, તો આ પ્લોટ મેં ભાડે આપ્યો, પછી એ લોકો જતા રહ્યા, પછી નવરાત્રી આવીને કોઈ કીધું આ પ્લોટ ભાડે આપો, आई हैव गिवन द प्लॉट ऑन अ रेंट, तो यहाँ पे मुझे रेंट मिल रही है, तो दिस इज अ वैकेंट प्लॉट, कुछ नहीं है इसमें, कोई लोन बोन कुछ नहीं किया है, कोई डेकोरेशन नहीं किया,
और ये प्लॉट की अगर मुझे रेंट मिलती है तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इट डिपेंड्स ऑन द केस टू केस बेसिस। अगर प्लॉट को आप बिल्डिंग के साथ किराए पे देते हो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। प्लॉट पे आपने लोन किया है, डेकोरेट करके अलग अलग पार्टी को अलग अलग दिन देते हो और उसको प्लॉट पे किराए पे देना ही आपका बिजनेस हो गया है, तो दैट इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी। बट आपके पास कोई प्लॉट है पड़ा है, कोई आता है और उसको किराए पे देते हो, द प्लॉट इज टोटली वैकेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, रेंट फ्रॉम द वैकेंट पीस ऑफ लैंड, जिसको हम ग्राउंड रेंट भी कहते हैं। एंड इफ यू रिसीव द ग्राउंड रेंट द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ओके, समझ में आप सबको So, ये? sorry for interrupting. Yes. I have a question. यस बेटा। Sir, like मेरे पास प्लॉट नहीं यार कैमरा तो मुझे पता तो चले कौन पूछ रहा है, कितना लोगों को like, जाके। यस, लेके आओ। like मेरे पास प्लॉट नहीं है बट एक रूम है और मैं उस रूम को रेंट पे देती हूँ फॉर 2 days। लाइक ट्रैवलर्स आते हैं अलग अलग, तो मैं उन्हें ऐसे 2 days के लिए 3 days के लिए रेंट पे देती हूँ। तो उस पे पीजीबीपी में वो टैक्सेबल है या हाउस वो वाला अंडर द हाउस प्रॉपर्टी? House property, then income will be taxable under that income from house property, because to let out that, see, there is a separate head available for the building આવે ને એટલે સીધું house property આવી જાય. Okay, so if you Sir, let out, yes, but suppose if you are involved in the hotel business, yes. अगर आप होटल बिजनेस में इन्वॉल्व हो, ओके, तो वो केस के अंदर क्या हो गया कि आपका बिल्डिंग है वो होटल है, एंड इफ यू आर नॉट ओनली गिविंग दी प्लॉट, मतलब वो बिल्डिंग अकेला किराए पे नहीं देते हो, बिल्डिंग के साथ आप फैसिलिटीज भी बेचते हो। ओके, तो इन दैट केस इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके, लेकिन आपके पास रूम है और रूम किसी को किराए पे देते हो, तो दैट रूम इनकम विल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। ओके, लेकिन उसको आपने होटल बना दिया है, गेस्ट हाउस बना दिया है, तो इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। अगर होटल और गेस्ट हाउस ऐसा कुछ नाम नहीं दिया है, ओके, तो वहां पे जो इनकम आपको जनरेट हो रही है, इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज हाउस प्रॉपर्टी इनकम एंड टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, okay. Now you can switch off the camera. Okay. So is it clear? Now let us come to the next point. Income from subletting of the house property. देखो, हाउस प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इनकम फ्रॉम सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सबलेटिंग मैंने आपको समझाया हुआ है आगे भी कि सबलेटिंग किसको कहते हैं। कि सपोज समझ लो कि मेरा एक घर है, आई एम द ओनर एंड आई हैव गिवन दिस हाउस ऑन अ रेंटल बेसिस टू मिस्टर ए, और मिस्टर ए इज पेइंग 5000 रेंट टू मी वन पर मंथ, तो 12 महीने का वो मुझे 60,000 रुपये देता है। देखो मुझे इनकम कहाँ से जनरेट हो रही है, घर में से, तो मेरे लिए इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस। अब ये मिस्टर ए क्या करता है, यही घर किसी मिस्टर बी को किराए पे दे देता है 7,000 रुपये। ओके, देखो जो ओनर होता है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी में मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि इफ द प्रॉपर्टी इज ओन बाय यू देन एंड योर इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो यहाँ आप ओनर हो, तो ओनर के लिए जब तक रेंटल इनकम हो रही है इट इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन मिस्टर ए ने आपसे किराए पे लिया 5,000 पे और वो 7,000 में मिस्टर बी को किराए पे दे रहा है, तो मिस्टर बी मिस्टर ए को कितना किराया दे रहा है, तो पूरे साल का उसने सपोज 84,000 आपको किराया दिया, महीने का 7,000 के हिसाब। ओके, तो देखो मिस्टर ए आपको कितना किराया देता है 60,000 और वो बी से कितना कलेक्ट करा 84,000, तो मिस्टर बी ने 14,000 इनकम कमाई। वो कहाँ से कमाई, उसने हाउस प्रॉपर्टी से कमाया, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है। ही हैज अर्न द इनकम बाय सबलेटिंग। એને કોઈની પાસેથી ભાડે લીધું, ત્રીજી વ્યક્તિને ભાડે આપી દીધું, तो आ इनकम जो जनरेट थे दिस इज कॉल्ड द इनकम फ्रॉम सबलेटिंग। मतलब जब तक आप ओनर हो आपके लिए कहा क्या कहा जाएगा, लेटिंग, मतलब आप किराए पे अपना खुद का मकान दे रहे हो और किसी और का मकान आप किराए पे लेके थर्ड पार्टी को देते हो, दैट इज कॉल्ड द सबलेटिंग।
If you are subletting the house and from that if you are earning the income, this income will be always taxable under the head income from other sources. So suppose if you are having a house property and if you let out, okay, मतलब आपने किसी से किराए पे लिया और आप थर्ड पार्टी को किराए पे देते हो, एंड इन दिस केस इफ यू अर्न द income will be taxable under the head income from other sources. तो ये केस में इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो यहाँ पे भी आगे कोई डिस्कशन नहीं आएगा सबलेटिंग वाले पॉइंट में। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज द एग्जामिनेशन फीस रिसीव्ड बाय द टीचर फ्रॉम द नॉन एम्प्लॉयर। ओके, तो सपोज एग्जामिनेशन फीस को टीचर नॉन एम्प्लॉयर से रिसीव करता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। देखो सपोज मैं ही टीचर हूँ, तो मेरा खुद का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। तो सपोज मैं आपके जब एमकॉम की जो फाइनल एग्जाम होगी उसके पेपर चेक करता हूँ, तो आई एम गेटिंग 7 रुपीज फॉर चेकिंग द पेपर। तो सपोज आप 500 लोग हो, उसके पेपर में चेक करूंगा ना, तो मुझे 3500 रुपीज मिलेगा। नाउ सी दिस आई एम रिसीविंग फ्रॉम होम, फ्रॉम द एमएस यूनिवर्सिटी। एमएस यूनिवर्सिटी कौन है? एमएस यूनिवर्सिटी मेरा एम्प्लॉयर है, और मेरे एम्प्लॉयर से कुछ भी रिसीव करता हूँ, तो दिस 3500 विल बी टैक्सेबल अंडर व्हिच हेड? दिस टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज, बिकॉज आई एम रिसीविंग फ्रॉम द एम्प्लॉयर। मैंने आगे अभी भी बताया थोड़ी देर पहले, if the relationship between the payer and payee is employer employee relationship, income will be taxable under the head salaries। लेकिन समझ लो कि मुझे मेरा इंस्टीट्यूट ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, वो मुझे बोलता है कि हेमंत भाई आप CS हो, मुझे CS फाइनल के पेपर चेक करके दो कंपनी लो या टैक्सेशन के। तो मैंने बोला ठीक है मैं करके दूंगा, और दे आर गिविंग मी 200 रुपीज फॉर चेकिंग वन पेपर, और सपोज उसके मैंने 1000 पेपर चेक किए। ओके, so I have received 2 lakh rupees from my institute for assessing the paper। okay, so for assessing the paper I am receiving 2 lakh rupees from my institute every year। so now this is I am receiving, देखो काम दोनों पे जगह पे एक ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने पेपर चेक किए, यहाँ पे भी पेपर चेक किए, लेकिन यहाँ पे चेक किए वो किसके किए? मेरे एम्प्लॉयर के। तो यहाँ पे मेरी इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? सैलरीज में। लेकिन ये 2 लाख रुपए मुझे मिले, देखो ICSI इज नॉट माई एम्प्लॉयर, ये मेरा एम्प्लॉयर नहीं है। ओके, इट इज नॉट माई एम्प्लॉयर। नाउ सपोज आई एम अर्निंग द इनकम फ्रॉम असेसिंग दिस क्वेश्चन पेपर। ओके, तो वो पेपर चेक करने का मुझे जो पैसा 2 लाख रुपए मेरे इंस्टीट्यूट ICSI से मुझे मिला, तो whatever I am receiving, this will be taxable under which head? It will be taxable under the income from other sources। So suppose if you are receiving, if you are a teacher and if you are receiving the examination fees, या पेपर सेट करने का एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड्स बोथ पेपर सेट करना, पेपर चेक करना, तो ऐसी कोई फीस मैं अपने मतलब रिसीव करता हूँ किससे? फ्रॉम दी पर्सन who is not my employer। तो एम्प्लॉयर नहीं है, ऐसे लोगों से आप एग्जामिनेशन फीस रिसीव करते हो, इट इज ट्रीटेड एज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये आपके अदर सोर्सेज की इनकम कही जाएगी और अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी। नाउ सपोज डायरेक्टर कमीशन फ्रॉम द बैंक गारंटी। ओके, तो अगर डायरेक्टर अपनी कंपनी को कोई बैंक गारंटी दे रहा है और उसका कमीशन वो ले रहा है, तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्या होता है? डायरेक्टर्स कमीशन ऑन द बैंक गारंटी, लेट अस अंडरस्टैंड। तो सपोज समझ लो ये एक कंपनी है, नई चालू हुई, तो कंपनी का नाम है ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो मतलब ABC प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी चालू हुई, और ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज अप्रोच टू द बैंक ऑफ बड़ौदा फॉर व्हाट? कि भाई मैंने आई वांट अ लोन ऑफ रुपीज 15 लाख, या चलो 15 लाख की लोन मुझे चाहिए। तो ये ABC लिमिटेड, ABC प्राइवेट लिमिटेड को बैंक ऑफ बड़ौदा बोलेगा कि भाई आप कुछ प्रॉपर्टी गिरवे रखो, कुछ सिक्योरिटी में रखो, तो हम आपको लोन देंगे। ये कंपनी बोलेगी भाई नहीं, मेरे पास कुछ गारंटी में देने के लिए नहीं, सिक्योरिटी में देने के लिए नहीं, तो लोन नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी का एक डायरेक्टर है मिस्टर ए, ओके, वो बोलता है कि मैं गारंटी देता हूं, इफ द कंपनी विल नॉट पे द लोन आई विल रीपे द लोन। तो उसने अपनी पर्सनल गारंटी दी, और उसने अपनी जो पर्सनल गारंटी दी, और वो गारंटी के बेस पे, ओके, जनरली गारंटी इज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ बेसिक सिक्योरिटी तो बैंक कभी भी कोई भी लोन लेती है, अपने अनसिक्योर लोन મળતી જ નથી અત્યારે,
इफ यू वांट टू टेक अ लोन, आपको आपकी कुछ प्रॉपर्टी गिरवे रखनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ वो ऐसा भी बोलेगा कि आपके कोई डायरेक्टर को बोलो कि वो गारंटी दे कि भाई अगर कंपनी ने लोन नहीं पे किया तो वो डायरेक्टर लोन पे कर देगा। तो डायरेक्टर ने गारंटी दी और वो गारंटी की वजह से कंपनी को 15 लाख की लोन मिल गई। अब ये डायरेक्टर के माथे पे लटकती तलवार है। कभी भी कंपनी ने धंधा अच्छा नहीं किया, अगर ये लोन नहीं रीपे कर पाई, तो ये 15 लाख की लोन किसको रीपे करनी पड़ेगी? डायरेक्टर। तो डायरेक्टर ऐसा मुफ्त में तो कुछ गारंटी देगा नहीं, तो डायरेक्टर कंपनी को बोलता है कि मैं अपनी गारंटी तो दूंगा, लेकिन ये 15 लाख का 1% मुझे कमीशन चाहिए, तो ही मैं गारंटी दूंगा। तो 15 लाख का 1% समझ लो, इसको 15,000 रुपये इसने कमीशन रिसीव किया। मतलब डायरेक्टर ने कंपनी को लोन मिले इसीलिए अपनी पर्सनल गारंटी दी, एंड फॉर गिविंग द पर्सनल गारंटी he has taken the interest, sorry, he has taken a commission from the company. So whatever commission is received by the director for giving the personal guarantee, for giving the bank guarantee, so if the director receives such kind of commission, for director it is treated as income from other sources, and it is taxable under the head income from other sources. उसके लिए income from other sources कहा जाएगा, और उसके लिए income from other sources में ही ये income taxable होगा। ठीक है। Now see director commission for underwriting share. Underwriting of shares आपको पता है कि अगर एक कंपनी शेयर इश्यू करती है, ठीक है, मार्केट में, तो डायरेक्टर अंडरटेक करता है कि मार्केट में शेयर इश्यू करो, कोई नहीं बाय करेगा तो ये शेयर मैं बाय कर लूंगा। ठीक है, तो इसने अंडरराइट किया। ओके, तो अंडरराइटिंग करने का भी वो डायरेक्टर कंपनी से कमीशन लेता है कि भाई जितना शेयर वो सब्सक्राइब करीस एना 1% मैंने कमीशन आपको, दैट इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन। यू मे हैव लर्न इन द अकाउंट। तो ऐसा कोई अंडरराइटिंग कमीशन आपको एज ए डायरेक्टर इफ यू आर रिसीविंग फ्रॉम द योर कंपनी, देन वॉट एवर अंडरराइटिंग कमीशन यू आर रिसीविंग, दैट विल बी टैक्सेबल फॉर यू एज योर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके लिए टैक्सेबल होगा, एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज द फैमिली पेंशन। ओके, फैमिली पेंशन, देखो ये पॉइंट आगे डिटेल में डिस्कस किया है, तब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं, आगे भी आगे का पॉइंट इधर ही डिस्कस कर लेते हैं कि फैमिली पेंशन क्या होता है। देखो व्हाट इज देयर आर, अगर पेंशन जो है, ओके, वो दो टाइप के रहते हैं। वन इज दी नॉर्मल पेंशन, ओके, और अनदर वन इज दी फैमिली पेंशन। अब ये फैमिली पेंशन और पेंशन में क्या डिफरेंस है? देखो, जब तक जिसने भी जॉब की है वो जिंदा है और उसको पेंशन मिल रहा है, इट इज नोन एज दी पेंशन। और अगर उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसके फैमिली मेंबर को पेंशन मिलता है, इट इज नोन एज दी फैमिली पेंशन। उसको क्या कहा जाएगा? फैमिली पेंशन। ये आपने पढ़ा हुआ होगा सैलरी में, सेकेंड ईयर बीकॉम में। लेकिन पेंशन और फैमिली पेंशन में क्या डिफरेंस है? जब तक जो एम्प्लॉई है वो जिंदा है, सपोज मैं रिटायर हो गया और रिटायर होने के बाद मैं जब तक जिंदा हूँ मुझे पेंशन मिल रहा है, तो इट इज ट्रीटेड एज अ पेंशन फॉर मी। ओके, और सपोज मेरी डेथ के बाद मेरी वाइफ को भी मिल रहा है पेंशन, तो दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज द फैमिली पेंशन। ओके, नाउ सपोज if I am receiving the pension from my employer, it is taxable under their salaries, क्योंकि मैं भले रिटायर हो गया हूँ लेकिन मुझे मिल कहाँ से रहा है? मेरे एम्प्लॉयर से। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप अभी भी एस्टैब्लिश हो रही है, बिकॉज आई एम रिसीविंग रिटायरमेंट बेनिफिट फ्रॉम माई एम्प्लॉयर, सो इट इज टैक्सेबल अंडर देयर सैलरी। लेकिन समझ लो मेरी डेथ हो गई और मेरी वाइफ को पेंशन मिल रहा है, तो इफ माई वाइफ इज रिसीविंग द पेंशन, इट इज नोन एज द फैमिली पेंशन। एंड दिस फैमिली पेंशन, देखो अभी मेरा एम्प्लॉयर सपोज एमएसयू है और मेरी वाइफ शी इज नॉट एमएसयू एम्प्लॉई, तो यहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं होता। तो अगर मेरी वाइफ को पेंशन मिल रहा है तो दैट पेंशन विल बी टैक्सेबल अंडर विच? अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब तक आपको पेंशन मिल रहा है कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरीज में, कि उसकी टैक्सेबिलिटी के प्रोविजन अलग अलग है, कॉम्यूटेड अनकॉम्यूटेड, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वी विल नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट, कि वो सैलरीज में आता है, सैलरीज। लेकिन अगर आपकी डेथ के बाद आपके फैमिली मेंबर को पेंशन मिल रहा है, सपोज माय वाइफ इज रिसीविंग द पेंशन आफ्टर माय डेथ, इट इज नोन एज द फैमिली पेंशन। एंड इफ द फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, ओके,
देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द फैमिली मेंबर ऑफ डिसीज पर्सन। तो मेरे वाइफ के लिए वो इनकम क्या कही जाएगी, फॉर माय वाइफ इट इज ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और यहाँ पे एक पॉइंट दूसरा ध्यान में रखने जैसा ये है कि पूरा फैमिली पेंशन आपको जो मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता, यहाँ से एक डिडक्शन भी मिलता है। चलो वो डिडक्शन भी हम साथ में चालू में ही देख लेते हैं तो आपको समझ में आए। वो डिडक्शंस के अंदर एक डिडक्शन है हमारा फैमिली पेंशन का, तो परमिसेबल डिडक्शन फ्रॉम दी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इसमें ये फैमिली पेंशन का डिडक्शन ये था कि देखो कितना डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन विल बी ₹15,000 और 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन, दोनों में से जो लोअर होगा इतना क्या होगा, दैट मच पेंशन इज अलाउड एज ए डिडक्शन। ओके, सपोज समझ लो मिस्टर एक्स कोई कंपनी में काम कर रहा था, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई और उसके बाद मिस्टर एक्स की वाइफ को पर मंथ 25,000 रुपया पेंशन मिल रहा है। पर मंथ 25,000 मतलब 12 महीने का कितना हुआ, तो देखो पर मंथ 25,000, तो 12 महीने का पेंशन हुआ कितना हुआ, 3 लाख रुपया। 3 लाख, ठीक है। तो आपको 3 लाख रुपया पेंशन मिल रहा है सपोज फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो दैट पेंशन यू हैव रिसीव्ड 3 लाख रुपीज पेंशन यू हैव रिसीव्ड सपोज, तो 12 महीने का आपको कितना पेंशन मिला, 3 लाख। मतलब आपको क्या करना है, सपोज तो ये इनकम किसको मिला, मिसिस एक्स को। दिस इज नॉट ए इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, क्योंकि मिस्टर एक्स को तो डेथ हो गई, मिसिस एक्स इज रिसीविंग 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज मिसिस एक्स के लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन पूरा 3 लाख नहीं होगा। यहाँ प्रोविजन क्या है, ₹15,000 और 1/3 ऑफ दिस पेंशन, तो 1/3 3 लाख का 1/3 करता हो कितना रहेगा, तो 3 लाख और उसका 1/3 किया हमने तो ये हुआ 1 लाख। ठीक है, ये दोनों में से लोअर कौन सा है, 15,000 और 1 लाख, दोनों में से लोअर कौन सा है, विच एवर इज लोअर। ओके, विच एवर इज लोअर मतलब 15,000 is lower, that is allowed as the deduction. So see, the remaining 2,85,000 will be taxable in the hands of Mrs. X. So ये इंटरेस्ट, ये पेंशन Mrs. X के लिए 2,85,000 will be taxable in the hands of Mrs. X. Is it clear to everyone? So suppose the family pension is received, then family pension will be taxable in the hands of Mrs. X. तो मिसिस एक्स को मतलब किसी की डेथ हो जाने के बाद ही उसके फैमिली मेंबर को पेंशन मिलता है, और अगर वो फैमिली मेंबर के लिए वो इनकम क्या होगी, तो कि टैक्सेबल होगी। कितनी टैक्सेबल होगी, क्योंकि इसमें से ये डिडक्शन आप दोगे कि 1/3 ऑफ द पेंशन, ओके, और ₹15,000 विच एवर इज लोअर, दैट इज अलाउड एज ए डिडक्शन। ओके, now see, interest received on compensation of compulsory acquisition by the government. Okay, so suppose if you receive, ये पॉइंट आगे शायद डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, जस्ट लेट मी चेक, अगर ये पॉइंट आगे है तो हम इसको अभी इतना डिटेल में नहीं जाना। इंटरेस्ट ऑन द कॉम्पेंसेशन और एनहन कॉम्पेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन, इसका सम भी है, तो हम इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट शायद है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्पेंसेशन, तो लास्ट पॉइंट, or any other payment in connection with the termination of employment or modification in terms of employment. Okay, तो अगर देखो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें टर्मिनेशन होता है, ओके, या तो फिर देखो कॉम्पेंसेशन और एनी अदर पेमेंट रिसीव्ड इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आपको अगर आपके एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिलता है तो इट इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर विच अंडर देयर सैलरी, बट समटाइम्स सी यू विल बी टर्मिनेटेड, आपको आपकी जॉब से निकाल दिया, ओके, और उस टाइम पे आपको निकाल देने का पैसा आपको मिला, ओके, तो उसके बदले में आपको कुछ कॉम्पेंसेशन मिला। ओके, नाउ इन दिस केस यू आर हैविंग अ टू ऑप्शन, ओके, you have a two option, you can make this income taxable under their salary also, okay, देखो यहाँ पे, और you can make this income taxable under their other sources also. सपोज मेरे एम्प्लॉयमेंट की कोई टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हुआ, सपोज मैंने जब ज्वाइन की एमएस यूनिवर्सिटी ने बोला था हेमंत भाई आपको बड़ोड़ा में ही पढ़ाना है, तो પછી ટ્રાન્સફર કરી દીધી મારી પાદરા, ઓકે, એટલે મારો રોજનો ખર્ચો વધી જશે અહીંયાથી પાદરા જવાનો,
I have claimed that give me some compensation. So some modification has taken place in terms of my employment contract. The employment contract के terms में change हुआ and I am getting some additional compensation from my employer. देखो ये पैसा मुझे मेरे employer से ही मिलता है and logically ये taxable होना चाहिए salary वाले हैं. But you have an option that you can make it taxable under the head salary under their income from other sources also. तो अदर सोर्सेज में भी ये इनकम टैक्सेबल हो सकती है. ओके नाउ सी देखो मतलब ये जरूरी नहीं कि इनकम हमेशा अदर सोर्सेज में आर जनरली टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. तो ये इनकम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होगी. जस्ट अ मिनट आई हैव अ कंफ्यूजन लेट मी चेक. 2 मिनट होल्ड करिए. 2 मिनट. हाँ बेटा Sir, I want to say something. Yes, yes. So will this be chargeable under PGBP? कौन सा वाला? The compensation we are talking about. क्यों टैक्सेबल होता है? बिजनेस थोड़ा है बेटा. ये कॉम्पेंसेशन को देखो मैंने आपको वहां पे भी कॉम्पेंसेशन पढ़ा है. यू आर राइट बट दैट इज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. आप धंधा कर रहे हो. मैंने उधर आपको पतंजलि वाला एग्जांपल देके समझाया. याद करिए वहां कोई एम्प्लॉय नहीं हो, कोई एजेंसी आपने ले रखा है. ओके अगर आपने कोई एजेंसी ले रखा है और एजेंसी के टर्म्स में कुछ चेंज होता है. ओके इफ समथिंग इज चेंज इन द टर्म्स ऑफ एजेंसी और आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया मतलब आप बिजनेस ही कर रहे हो. अब बिजनेस के टर्म्स में कुछ चेंजेस आते हैं और आपको कुछ कॉम्पेंसेशन मिलता है. देन द इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी. दैट इज वेरी मच क्लियर. ओके नाउ ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 Clause 11 what it says the compensation on termination of employment or modification in the terms of employment is treated as income and it is taxable under the head income from other sources only. Okay मतलब यहाँ पे ये स्पेसिफिक बोला कि ये इनकम हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी. सैलरी में भी टैक्सेबल नहीं करना है. ये इनकम को आपको अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल करना है. ओके तो सपोज इफ यू रिसीव एनी कॉम्पेंसेशन. ओके अगर आपको मतलब आपकी टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट के कुछ चेंज होते हैं आपके एम्प्लॉयर के साथ. ओके एंड इफ यू रिसीव एनी अमाउंट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर तो फिर आपका एम्प्लॉयर आपको छुटा कर देता है कि भाई कल से नौकरी ना होते तो ही इज टर्मिनेटिंग यू. एंड ड्यू टू दिस इफ यू रिसीव एनी अमाउंट so previously that income was taxable. That was I get confused that whether it is taxable under their salary or something. But see here in my the book which I am using this book. Okay in this book also it is clearly mentioned that income will be टैक्सेबल. देखो ये वाला बुक मैं यूज करता हूँ आपको पढ़ाने के लिए. ओके सो दिस इनकम विल बी आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. सो सपोज मतलब कंपलसरी वहां पे ही टैक्सेबल होगा. अगर तो पहले ऐसा था देखो ये रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन होता है. रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन तो वो टैक्सेबल होता है सैलरी. देखो देयर आर 2-3 थिंग्स. आपको मैंने 1-2 दिन पहले एक पॉइंट पढ़ाया भी था ऐसा कि अगर आप कोई जगह पे जॉब कर रहे हो. ओके और एम्प्लॉयर इज अनेबल टू गिव यू द एम्प्लॉयमेंट. वो आपको जॉब से छुटा कर देता है. तो दैट इज नोन एज द रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन. रिट्रेंचमेंट. लेकिन सपोज समझ आपके यहाँ 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं. 100 में से 50 को उसने छुटा कर दिया. तो दैट इज कॉल्ड व्हाट रिट्रेंचमेंट. छटनी करवी है गुजराती में આપણે કહીએ. ओके तो ये जो है ये अगर आप कोई कंपनी में से रिट्रेंच हुए मतलब बहुत सारे लोगों को निकाल दिया और इसमें आपको भी निकाल दिया और तो वो टाइम पे कंपनी आपको क्या देती है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन.
ये कॉम्पेंसेशन अलग है, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। कंपनी ने आपको निकाल दिया, लेकिन आपको अकेले को नहीं निकाला, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया। और इफ यू रिसीव दिस कॉम्पेंसेशन, देखो दिस विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज। सपोज कंपनी ने वीआरएस स्कीम इश्यू की और आपने वीआरएस का आपको रेम्यूनरेशन मिला, तो सपोज आपको अकेले को निकाला, लेकिन आपको छूट दी कि आप आइदर इफ यू वांट टू गो यू कैन गो और यू कैन कंटिन्यू। तो आपने ऑप्ट किया कि मैं वीआरएस ले रहा हूँ, और यहाँ वीआरएस का कॉम्पेंसेशन आपको मिला। देखो अगर आपको वीआरएस लेने से भी कॉम्पेंसेशन मिलता है, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर सैलरीज। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने आपको क्या कर दिया, टर्मिनेट, आपको अकेले को निकाल दिया कि चाल काल थी आवतो नहीं था, तुम्हें कोई भूल कर, और वो टर्मिनेशन पे अगर आपको कुछ कॉम्पेंसेशन मिला, दिस विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पे क्या यूज वर्ड किया है, ऑन विथ टर्मिनेशन, कॉम्पेंसेशन और एनी अदर पेमेंट इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। आपका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होता है, या तो फिर मॉडिफिकेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसमें कुछ चेंज किया, मतलब देखो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज किया मतलब आपको डिग्रेड किया होगा, तो वही कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। सपोज अपग्रेड किया जाएगा तो थोड़ा कॉम्पेंसेशन, વધારે सैलरी મળવાની જ છે, आपको डिग्रेड किया होगा तो आपको दिया होगा कॉम्पेंसेशन। तो आपको कॉम्पेंसेशन उस टाइम पे मिला, मतलब अगर आपका टर्मिनेशन होता है या तो फिर आपका डिग्रेडेशन होता है, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज होती है जिससे आपका डिग्रेडेशन होता है, and at that time if you receive any compensation, then that compensation will be taxable under the head income from other sources. Okay, so is it clear to everyone this point now? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, now I have clarified with you कि रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलता है, सैलरीज में टैक्सेबल होगा, वीआरएस में कॉम्पेंसेशन मिलता है वहां, लेकिन टर्मिनेट कर दिया आपको, उस टाइम पे कॉम्पेंसेशन मिला, भले एम्प्लॉयर से मिला, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। ओके, नाउ सी देखो ये कुछ इनकम ऐसी है कि फॉलोइंग इनकम्स आर आल्सो टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इफ इट इज नॉट टैक्स्ड अंडर द हेड पीजीबीपी। मतलब ये इनकम भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकती है, मतलब यू आर हैविंग अ ऑप्शन कि आप, ये कुछ इनकम्स ऐसी है जिसको आप, और ये डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे। ओके, कि ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि यू कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर अदर सोर्सेज और यू कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी। और वो केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो इनकम को आपको जो मिल रही है वो whether it is actually business or not. If it is actually business, it will be taxable under the business and profession. Or if it is not actually business, it may be taxable under the income from other sources. Same activity. For example, देखो मैं एक example देता हूँ तो you will get it. Suppose if you are receiving the income from royalty. रॉयल्टी आपको पता है, अगर आप कोई बुक लिखते हो या कोई सॉन्ग आके रिकॉर्ड करके उसकी सीडी बनाते हो और वहां से आपको पैसा मिलता है। सपोज यू आर अ यूट्यूबर, ओके, और यू आर अ ब्लॉगर, ओके, હવે તમારી ભાષામાં વાત કરવી પડે ને, તમને રોયલ્ટી સમજાવી હોય તો સપોઝ यू आर अ यूट्यूबर, यू आर अ ब्लॉगर, ओके, लेकिन और वहां से आपको इनकम आ रही है, तो वॉट एवर इनकम यू आर रिसीविंग दैट इज कॉल्ड अ रॉयल्टी इनकम। सपोज आप कोई बुक लिख देते हो तो बुक की अगर रॉयल्टी आपको मिल रही है तो दैट इज योर इनकम। Now it depends on case to case basis whether the royalty will be taxable under the head PGBP or under their other sources. देखो जैसे कोई, मैं अपना खुद का केस ले लेता हूँ कि मैं फुल फ्लेज टीचर हूँ, तो मुझे टाइम मिलता है तो मैं बुक लिखता हूँ, तो और मुझे रॉयल्टी से इनकम आएगी। देखो इट इज नॉट माई बिजनेस टू राइट द बुक, ओके, but whenever I get the time I write the book and get published, and if I receive the royalty, for me that income will be taxable under the income from other sources. Now suppose कोई Mr. Y है, okay, Mr. Y is writing a book, okay, और वो बुक लिख रहा है और वो फुल टाइम ऑथर ही है, वो ऑथर ही है, तो ऑथर बनना उसके लिए बिजनेस हो गया, तो उसके लिए रॉयल्टी की इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, पीजीबीपी में। लेकिन मैं ऑथर नहीं हूँ फुल टाइम, मेरा दूसरा बिजनेस है, मेरी दूसरी जॉब है और मुझे रॉयल्टी की इनकम हो रही है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो केस टू केस बेसिस पे जाता है। चलो वन बाय वन देखते जाते तो आपको समझ में आएगा कि तो ये सब केसेस ऐसे कि ये इनकम केस टू केस बेसिस पे
हम डिस्कस कर सकते हैं कि इनकम कहाँ टैक्सेबल हो सकती है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. सपोज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट एंड डिपॉजिट विद द कंपनी. ओके, यहाँ पे बोला है डिस्कस लेटर. ओके, फिर भी हम डिस्कस कर देते हैं. सपोज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है. ओके, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, इंटरेस्ट ऑन कंपनी डिपॉजिट है. सपोज इफ यू आर अर्निंग दी, सपोज देखो देर आर टू अलग अलग एंटिटी वी आर टेकिंग. आई एम टेकिंग वन who is Mr. A, and another one, this is ABC Limited, a non-banking finance company. Okay, in finance company और मिस्टर ए है. अभी मिस्टर ए के पास 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मिस्टर एक्स ने ये 5 लाख में से 1 लाख रुपया कोई कंपनी की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, 2 लाख रुपया बैंक में एफडी कर दी. ओके, और 1 लाख रुपया कोई कंपनी में डिपॉजिट दिया. ओके, सपोज 2 लाख रुपया कोई कंपनी में, कंपनी में भी डिपॉजिट दे सकते हो, तो कंपनी में डिपॉजिट दे दिया. और ये सभी पे आप ये मिस्टर एक्स को 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला. देखो, मिस्टर एक्स का धंधा नहीं है कोई जगह पे इन्वेस्ट करना, लेकिन उसके पास 5 लाख रुपए ज़्यादा पड़े थे, तो उसने बैंक में रख दिया, एफडी कर दी, कंपनी डिपॉजिट में दे दिया, सिक्योरिटीज बाय कर ली, और उस पर उसको ये इंटरेस्ट मिला. देखो, मिस्टर एक्स का धंधा पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं है, तो ये इंटरेस्ट मिस्टर एक्स के लिए कहाँ टैक्सेबल होगा? फॉर मिस्टर एक्स दिस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. अभी ये एबीसी लिमिटेड, उसका ये एबीसी लिमिटेड बनी क्यों है? क्योंकि इट इज अ फाइनेंस कंपनी, જેને પૈસા जो એને વ્યાજે આપે. तो देखो, ये एबीसी लिमिटेड ने कोई कंपनी को, कोई कंपनी की सिक्योरिटीज परचेज की 50 लाख रुपए. ओके, एबीसी लिमिटेड ने कोई दूसरी कंपनी को डिपॉजिट दिया 50 लाख रुपए का. ओके, और उसको साल का 10 लाख रुपया इंटरेस्ट मिला. देखो, ये एबीसी का धंधा क्या है? एबीसी का धंधा ही लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना है. ओके, तो और एबीसी को ये 10 लाख की इनकम हुई, वो एबीसी लिमिटेड के कहाँ लिए कहाँ टैक्सेबल होगी? इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, क्योंकि इसका बिजनेस है और इसका ये बिजनेस नहीं है. तो इंटरेस्ट इनकम अगर आप अर्न कर रहे हो, तो इफ टू लैंड द मनी इज योर बिजनेस, एंड इफ यू आर अर्निंग द इंटरेस्ट, इट इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. कारण के पैसा धीरवा है તમારો ધંધો છે, પણ સપોઝ आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा पैसा पड़ा है और आपने बैंक में रख दिया, सिक्योरिटीज बाय कर दी, कंपनी डिपॉजिट बाय कर ली, एंड इफ यू आर अर्निंग द इंटरेस्ट, फॉर यू इट इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. इज इट क्लियर? अगर पैसा किसी को लोन पे देना, उसको इन्वेस्ट करना, वो आपका बिजनेस ही है, तो फॉर यू इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन. ओके, बट ये बिजनेस नहीं है, तो इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. सेम वे देखो, ये आज ही पढ़ाया मैंने आपके क्लास में, दोनों क्लास में, G5 में और G8 में और G3 में, ये दोनों क्लास में पढ़ाया है कि अगर आप एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है, ओके, वो एम्प्लॉयर को मिलता है. मैंने आज एक सम भी करवाया आपको इसमें. ओके, कि एम्प्लॉई का, अगर एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, ओके, अगर आपके पास मटेरियल हो, तो मटेरियल में कल आज ही मैंने एक सम करवाया था, और उसमें लिखा है लास्ट में, वो पॉइंट नंबर, पेज नंबर, मतलब पेज नंबर तो याद नहीं है मेरे को, लेकिन सेक्शन 36 जहाँ चालू हो रहा है, उसमें लास्ट वाला पॉइंट है एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन. तो वहाँ पे ऐसा एक लिखा है लाइन कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से उसकी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है टुवर्ड्स द प्रोविडेंट फंड और सुपरएन्युएशन फंड, फॉर एम्प्लॉयर इट इज ट्रीटेड एज ए इनकम. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड इन द इनकम, एंड इफ इट इज डिपॉजिटेड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन. ऐसा पढ़ाया था आज मैंने. Yes, sir. ओके, तो ये जो पैसा आपको आपके एम्प्लॉय से जो मिल रहा है, वॉट एवर अमाउंट यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एम्प्लॉय, ओके, जो भी पैसा आपको आपके एम्प्लॉय से मिल रहा है, वॉट एवर यू आर रिसीविंग, यू हैव अ टू ऑप्शन. आइदर यू कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी. अगर आपको लगता है कि पीजीबीपी में मुझे नहीं टैक्सेबल करना है, आई वांट टू मेक इट टैक्सेबल एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वहां पे भी टैक्सेबल कर सकते हैं. ओके, तो एक बार टैक्सेबल करो, और जैसे ही ड्यू डेट पे डिपॉजिट करोगे, उसका डिडक्शन मिलेगा. ओके, सपोज
मैंने अपने एम्प्लॉय से 50,000 रुपया रिसीव किया, तो ये मेरी इनकम हुई। तो ये मेरी इनकम में या तो मैं पीजीबीपी की इनकम में ऐड करूंगा या तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड करूंगा। 50,000 मिला और 50,000 जैसे मिला मैंने उसका डिपॉजिट भी करवा दिया, तो मेरी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, समझ लो मेरी टोटल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 10 लाख रुपया, और 10 लाख है उसमें मैंने 50,000 पहले ऐड कर दिया, बाद में 50,000 लेस कर दिया, तो इनकम विल नॉट गेट चेंज। हाँ, लेकिन 50,000 में से मैंने 40,000 ही जमा करवाया, तो यहाँ मेरा 10,10,000 टैक्सेबल इनकम होगा। मतलब ड्यू डेट से पहले आप डिपॉजिट करते हो, इट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। ड्यू डेट से पहले जितना अमाउंट आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। ओके, तो ये जो पॉइंट है, इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन है। यू कैन मेक दिस इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज ऑल्सो, और अगर आपको अदर सोर्सेज में नहीं करना है, इफ यू कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी। देखो यहाँ पे भी बोला है कि नॉट रेबिटेड बिफोर ड्यू डेट, जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाता है। सपोज यहाँ पे मैंने बताया कि मैंने 50,000 एम्प्लॉय से लिया और 40,000 ही डिपॉजिट करवाया, तो 10,000 नहीं करवाया, तो 10,000 मेरी टैक्सेबल इनकम हो गई। तो आई कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी, और मुझे वहां नहीं करना है तो आई कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोनों में से कोई भी हेड में मैं इनकम को टैक्सेबल कर सकता हूँ। ठीक है, सेम वे। So, यस, sorry for interrupting, but why it is taxable under the head PGBP? पीजीबीपी में बिजनेस आप कर रहे हो, बिजनेस के आपके एम्प्लॉइज है, और एम्प्लॉइज की सैलरी से आप रिसीव करते हो, तो इट इज ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम। ओके, बट इफ यू डोंट वांट टू मेक इट टैक्सेबल देयर, इट इज टैक्सेबल अंडर देयर अदर सोर्सेज। ओके, क्योंकि એમ્પ્લોય કેમ છે, તમારો ધંધો છે એટલા માટે તો એમ્પ્લોય છે। ઓકે, એની સેલેરીથી તમે લીધા, એનું લોજિક તમે જો આજે ક્લાસમાં સમ 2 વાર સમ કરાયો છે મેં આખો ડિટેલમાં, तो अगर आपने ये पूछा मतलब क्लास मैं पता नहीं इफ यू हैव अटेंडेड, तो यू मस्ट बी नोइंग कि भाई मैंने क्यों इसको टैक्सेबल किया, इसका लॉजिक इसके पीछे ये नहीं कि कहाँ टैक्सेबल होता है, वो टैक्सेबल क्यों होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। कि आप एम्प्लॉय से ले लेते हो पैसा, મારી સેલેરીમાંથી 5,000 લઈ લીધા, એટલે પછી મારી ડ્યુટી શું છે, 5,000 મારે ટાઈમ પર જમા કરાવવાના। હવે 5,000 માંથી હું 4,000 જ જમા કરાવું તો બાકીનો ડિફરન્સ 1,000 ટેક્સેબલ થાય। હવે યુ હેવ ઓપ્શન, યુ કેન મેક ઇટ આઈધર ટેક્સેબલ અંડર ધેર પીજીબીપી, કારણ કે તમારો એમ્પ્લોય છે એટલા માટે પીજીબીપી માં કરી શકો છો। તમારે ત્યાં નથી કરવો, provision is very much clear, you can make it taxable under their income from other sources also. Is it clear? Yes, sir. Okay, now see income from letting out of plant machinery and furniture। देखो ये भी केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करता है। सपोज समझी लो कि મારી પાસે 2-3 ફર્નિચરની વસ્તુઓ છે મારા ઘરે ખાલી પડી રહી છે, કે એક टीवी છે, 2-3 कपबोर्ड है। ओके, तो ये कपबोर्ड टीवी है, कुछ 1-2 मशीन्स पड़े हैं, वो ऐसे ही फ्री पड़े रहे, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा इसको किसी को रेंट पे दे देता हूँ। तो इसको मैं किसी को रेंट पे देता हूँ, रेंटल इनकम आती है, तो मेरे लिए कहाँ टैक्सेबल होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, लेकिन समझ लो कि मेरे पास बहुत सारा फर्नीचर है, बहुत सारे कपबोर्ड्स है, बहुत सारे मशीन है, और मैंने यही धंधा बना दिया है, इसको रेंट पे देना ही मेरा बिजनेस है। ओके, सो सपोज मेरा फरास खाना का बिजनेस है, तो आई एम लेटिंग आउट द प्लांट। ओके, सपोज जो प्लांट है कूलिंग प्लांट है सपोज, या तो फिर कुछ भी समझ लो कि कोई मशीन है। ओके, वो मशीन मैं किराए पे देता हूँ, या तो फिर मेरे पास कुछ फर्नीचर है। ओके, तो फर्नीचर या तो ये सब चीज़ों को रेंट पे देना ही मेरा धंधा है, तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबी। ओके, तो ये डिपेंड ऑन द केस टू केस बेसिस कि अगर आपके पास कुछ फर्नीचर पड़ा है और आपने किसी को ऐसे ही रेंट पे दे दिया, यार इफ यू आर अर्निंग द इनकम फ्रॉम देयर, इट विल बी टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन फर्नीचर, प्लांट और मशीनरी, तीनों चीज़ों को रेंट पे देना आपका बिजनेस ही है, तो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी, it will be taxable under the head profit and gains of business and profits। Okay, so if you are earning the income from letting out એટલે ભાડે આપવાથી, શું તો કે plant machinery and furniture, so on letting out of plant machinery and furniture if you are earning any income, then income will be taxable under the head income from other sources। but if it is your business,
કે પ્લાન્ટ મશીનરી ને ફર્નિચર ને ભાડે આપવાનો જ તમારો ધંધો છે, ઇટ વિલ બી ટેક્સેબલ અંડર ધેર પીજી. ઓકે, નાઉ ધ નેક્સ્ટ પોઈન્ટ ઇઝ લેટિંગ આઉટ ઓફ, देखो बिल्डिंग which is inseparable from the letting out of plant machinery and furniture. मतलब देखो ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझने जैसा है कि मैं अगर मेरे पास अकेली बिल्डिंग है, बिल्डिंग को किसी को रेंट पे देता हूं, कहाँ होगी इसकी इनकम टैक्सेबल? हाउस प्रॉपर्टी, टैक्सेबल अंडर देयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी. नाउ सपोज समझ लो मेरे पास एक मशीनरी है और ये मशीनरी को मैं रेंट पे देता हूँ, और रेंट को पे देना मेरा धंधा नहीं है, लेकिन मशीन વધારાનું હતું તો मैं ભાડે આપી દીધું. क्या टैक्सेबल થશે इसकी रेंटल इनकम? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. ओके, अभी आप समझ लो मेरे पास मशीनरी या प्लांट या फर्नीचर है बहुत सारा, और उसको मैं रेंट पे देता हूँ, और ये रेंट पे देना मेरा बिजनेस है. कहाँ होगी इनकम टैक्सेबल? पीजीबीपी. ठीक है, अभी आप PGBP. पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा. ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द नेक्स्ट पॉइंट. सपोज आई एम लेटिंग आउट दी बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग किराए पे देता हूँ अलॉन्ग विद दी प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर. ओके, प्लांट मशीनरी और फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों को साथ में किराए पे देता हूँ, और ये प्लांट बिल्डिंग से ऐसा अटैच है कि मुझे प्लांट किसको किराए पे देना है तो कंपल्सरीली मुझे बिल्डिंग देनी पड़ेगी. मतलब बोथ आइटम्स आर नॉन सेपरेबल, वो सेपरेबल नहीं है. देखो यहाँ आप बिल्डिंग भी किराए पे देते हो और प्लांट भी किराए पे देते हो. सपोज आपके पास एक फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर एक प्लांट है, ऐसा ही इंस्टॉल किया है कि प्लांट को किराए पे देना है तो आपको ये बिल्डिंग को भी किराए पे देना है. प्लांट अलग नहीं हो सकता, इनसेपरेबल. तो सपोज इफ यू लेट आउट द बिल्डिंग अलॉन्ग विद द प्लांट, ये केस में देखो जनरली क्या होता है, बिल्डिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल होती है. बट इफ यू लेट आउट द बिल्डिंग अलॉन्ग विद द प्लांट and if both things are not separable, income will be taxable under their income from other sources. Okay, हाँ, लेकिन सपोज ऐसी बिल्डिंग और प्लांट बना के आपको रेंट पे देना ही आपका धंधा है तो इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर विच? अंडर देयर प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट. सो इट इज अप टू यू कि भाई आपको इनकम अदर सोर्सेज पे टैक्सेबल करनी है या पीजीबीपी में, आप पे डिपेंड करता है. बट जनरली इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. तो अगर दोनों सेपरेबल नहीं है तो ये इनकम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल है. सपोज अदर सोर्सेज का सम आप सॉल्व करते हो और आपको बोला है कि इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग को लेट आउट करने से आपको इनकम अराइज हुई. ओके, अदर सोर्सेज के सम में, और सपोज ऐसा लिखा है which is inseparable from the letting out of the building and plant and machinery और oblique furniture. बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर के साथ आप किराए पे देते हो और वो चीजें सेपरेबल नहीं है. Okay, so if it is not separable, in that case, the income you can either make it taxable under their PGBP or you can make it taxable under their income from other sources. Other sources वाले सम में अगर आपको दिया है कि not separable, so in that case you can make this income taxable. Suppose देखो you can see this kind of point is given that income from letting out of building and machinery अंडर वन कंपोजिट लीज, मतलब, और ये दोनों इनसेपरेबल है. अगर आपको ऐसा लिखा है, यहाँ पे लिखा है बोथ आर इनसेपरेबल, तो मतलब ये दो चीज आपको अपने बिल्डिंग और मशीनरी दोनों को साथ में किराए पे दिए और दोनों का रेंट भी आप एक साथ में लेते हैं. ओके, बिल्डिंग નું અલગ ભાડું નથી ને મશીનરી નું અલગ નથી, બેવનું રેન્ટ ભેગું લો છો તમે. ઓકે, so in that case whatever amount you are receiving that is taxable under the head income from other sources. तो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा. लेकिन अगर ये आपका आप बोलते हो कि ये मेरा एक बिजनेस है एंड आई वांट टू मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी, यू कैन मेक इट टैक्सेबल पीजीबीपी. देखो ये सभी इनकम ऐसी है, इट इज एट द ऑप्शन ऑफ असेसी. असेसी कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर देयर पीजीबीपी आल्सो. ओके, देखो आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि इफ यू रिसीव एनी सम अंडर द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग द बोनस अदर देन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय. देखो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय वाला जो है, अगर आप एम्प्लॉयर हो और आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है.
अगर आप एम्प्लॉई और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है, सैलरी में टैक्सेबल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है, ओके, इसके अलावा भी मिल सकता है, यस मिल सकता है। सपोज समझ लो कि कोई कंपनी है, उसने अपने कीमैन के लिए पॉलिसी ली और आप वो कंपनी के सप्लायर और वो कंपनी वो कीमैन के नाम से चलती है। अगर समझ लो कीमैन की डेथ हो गई, वो कंपनी बंद हो गई, तो आपका वो कंपनी में सप्लाई करना भी बंद हो गया और आप ऐसे सप्लायर थे who was exclusively supplying the goods to that factory and that factory is closed down. तो अल्टीमेटली उसके कीमैन की डेथ होने की वजह से आपका भी धंधा पूरा बंद हो जाएगा और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के आप भी पार्टी थे, तो यू हैव आल्सो रिसीव्ड सम कॉम्पेंसेशन फ्रॉम दी इंश्योरेंस कंपनी। ये कंपनी का कीमैन की डेथ हो गई और उसकी वजह से आपको पैसा मिला। नाउ यू आर नॉट एम्प्लॉय, यू आर नॉट एम्प्लॉयर, बट स्टिल यू आर रिसीविंग दी some amount from the Cayman insurance policy. Now, if you receive this kind of amount, for you it is taxable under their income from other sources. But if you want to make it taxable under their PGBP, you can make it taxable. देखो यहाँ पे heading यही है कि this income if you want to make taxable, if it is not tax under the PGBP, PGBP में ये सब income को आपने tax नहीं किया है तो other sources में taxable हो सकता है। Like suppose insurance commission, आप insurance के एजेंट हो, पॉलिसीज बेचते हो, ओके, तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने पे आपको कमीशन मिलता है। ओके, नाउ यू हैव ऑप्शन कि वॉट एवर कमीशन यू आर रिसीविंग यू कैन मेक इट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। सपोज તમે ફૂલ ટાઈમ એજન્ટ જ છો એલઆઈસી ના, બધા પોલિસી વેચો તો તમારો ધંધો થઈ ગયો। ઇફ યુ રિસીવ ધ કમિશન ઇટ ઇઝ ટેક્सेबल एज योर पीजीबीपी इनकम। लेकिन सपोज कोई मेरे जैसा है कि भाई एमएस यूनिवर्सिटी में जॉब करता है और बपोर પછી टाइम મળે तो पॉलिसी વેચવા નીકળો। So suppose if I am receiving the commission, I have option, I can make it taxable under the head other sources. Same way, if you receive the income from the royalty वाला point मैंने आपको explain कर दिया, okay. So these are the various income। देखो आपको मैंने starting में क्या बताया कि which incomes are taxable under their income from other sources. So I have discussed with you this point that under the head income from other sources, which incomes are taxable? If there is a income, okay, and income is not covered under any other head, if there is a income, okay, income is not exempt and not covered in any other head, तो वो income तो other sources में taxable होती ही होती है। But these are also various income which are specifically mentioned in the act and it says that ये सभी इनकम हमेशा अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी और ये सभी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो सकती है इफ इट इज नॉट टैक्स्ड बाय यू अंडर देयर पीजीबीपी। मतलब इसको अगर आपने पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दिया है, यहाँ टैक्स करने की जरूरत नहीं है, ओके। लेकिन आपने अदर पीजीबीपी में नहीं किया तो दिस इनकम विल बी आल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो अदर सोर्सेज में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. So I have Yes, sir. discussed with you. So I know that कि यहाँ पे भी मैं स्पीड नहीं कर रहा हूँ, क्लास की स्पीड से ही पढ़ा रहा हूँ और आपने समझा अच्छे से, क्लास में जैसे समझते हो वैसे ही, ठीक है। तो हियर आई एम कंक्लूडिंग माय टुडेज लेक्चर। देखो कल या परसों 2 दिन में चैप्टर मेरा खत्म हो जाएगा, प्रोबेबली बाय टुमारो or day after tomorrow I will complete this chapter and then we move towards the income from capital gain। okay, capital gain वाला चैप्टर भी मतलब बिफोर एग्जाम, ओके, ऑन और बिफोर सेकेंड और थर्ड आपका ये दोनों चैप्टर हो जाएंगे। तो डोंट वरी, मेरे साथ साथ आप प्रिपेयर करते रहते रहिए, ओके। तो आपका एग्जाम का प्रिपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, ओके। और वो एग्जाम का पेपर स्टाइल क्या होगा, कैसे होगा, that we will discuss in my last lecture। but अभी आपका ड्यूटी क्या है कि you have to prepare with me, okay। so this is your duty। yes, so here I am concluding the